Good morning, friends, and welcome again to this session number 10. Uh, I guess it's 10 or 9, maybe it's 9 session. Anyway, we'll begin with today's sessions. And, before we start our actual session, let's go through what we did last 2 days. Yeah, I'll say last 2 days for the reason which is not possible now, or it may be a wastage of time, in case we start discussing again right from the uh, session number 1. So, in last 2 sessions, what we have done is basically we were learning about the accounting entry. That is, we learned about the accounting vouchers. Then we went on to the inventory vouchers. We learned manufacturing vouchers. We learned about order vouchers. We learned F12 F12 configurations for each of these voucher type, voucher entry, right? So this is the way we started with, and after finishing a watch entry part, we moved on to the reporting sections. So let's begin with the reporting section. We have finished maybe 2 or 3 different points, or rather, whatever was listed on the gateway of Tally, we have finished most of them, like say balance sheet, profit and loss account, and then we entered into display menu, and in display menu we looked at trial balance, the various options available in trial balance. I showed you one more thing, like, how the group behaves sub-ledger works, I mean, for debtors and creditors, by default, the setting is set to yes. So how does it work, and how does it gives the reporting? What are the benefits of that kind of settings? That everything I had explained you. So let's move further. I am beginning my session for today with starting the screen, that is Tally screen. So this is the screen what I'm sharing. This is what is your Tally, that is tally.erp9, release 6.6.1, and I'm just selecting the same company again which we are using for our training session purpose, that is RIL Company Private Limited 2021. So I'm just choosing that company, entering credentials, login credentials, and loading that company. So we are into now company data. The company data has been loaded into Tally. As I said right from beginning, we learned about the creation of company, F11 features, then creation of masters, creation of transaction, little bit about utilities, and then we went to report balance sheet. We looked at balance sheet, profit and loss account, stock summary. I showed different options available in stock summary, F12 settings, and then what are the vertical buttons available. Beside that, we have seen. Okay, we'll move on to display. We learnt about trial balance and daybook. So daybook में जरा if we say I'll take you back to daybook. Daybook में basically daybook is one of the very important reports available in Tally for the reason यहाँ पे आपको जो भी display होता है सारे तरह के voucher जितने भी vouchers भले वो deleted हो, cancelled हो, optional हो, post dated हो, सारे vouchers आपको ये एक ही screen पे वो दिखाई देते हैं. And for a given date, for example, it by default takes is the date of last entry as the date, that is 29th May 2020. But in case you wish to change the date, maybe you can say I want to see the transaction for 28/5. Just change the date. आप डेट को चेंज करो, F2 बटन जो है डेट का वो प्रेस करिए. वहां पे आपको जो भी डिजायर्ड डेट है जिसके लिए आप जो डेट का आप रिपोर्ट देखना चाहते हो वो आप एंटर करिए, तो आपको वो डेट को रिपोर्टिंग यहाँ पे आपको मिल सकते हैं. सेम वे, ये तो डेट की बात की मैंने. इन केस यू वांट टू लुक एट द रिपोर्ट, आपको पूरा ये एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए चाहिए सारे डेबुक, यानी सारे डेबुक ट्रांजैक्शंस आपको देखने हैं. मे बी मुझे सारे मई मंथ के ट्रांजैक्शन देखने हैं, तो आई कैन जस्ट एंटर. मैंने डेट के बारे में भी आपको मैजिक बताया था कि आप जिस तरह चाहिए वैसे ये डेट स्पेसिफाई कर सकते हो. 1.5 लिखिए, 1-5 लिखिए, या तो सीधा में लिखिए तो भी वो फर्स्ट में ले लेगा, क्योंकि when you do not write any date, I'll repeat, when you do not write any date, it will take first day in from field, and in the end field, if I write May, it will take date of last entry, and in case we have already completed the month with the 31st of May, it will take 31st, right? So okay, sorry, it has taken the date of last date of month. Yes, sorry. So I was thinking it was the date of last entry, but it takes eventually it takes the date of uh, last date of the month. Okay, so this is the way
दिस इज द वे यू कैन लुक एट योर डे बुक। अब ये डे बुक में और कई सारे ऑप्शन है, जैसे हमने मैं आपको बताना चाहूंगा, इन फैक्ट यू नो वी जस्ट कवर्ड व्हाट एवर द अवेलेबल ऑन द राइट साइड बटन। जैसे इसमें चेंज वाउचर है, चेंज वाउचर मुझे एक पर्टिकुलर वाउचर पे फिल्टर करना है, तो ये मैं इस तरह कर सकता हूँ। मुझे सारे पेमेंट वाउचर देखना है तो ऑल पेमेंट वाउचर्स करके मैं कर सकता हूँ। बाद में मुझे अगर ऑल सेल्स चाहिए तो मैं ऑल सेल्स या तो पर्टिकुलर सेल्स, सेल्स मुंबई हो, सेल्स पुणे हो, इस तरह से मैं फिल्टर कर सकता हूँ। या तो मुझे सारे चाहिए तो ऑल आइटम्स करके मैं इसको चूज कर सकता हूँ। अभी ये हो गया डे बुक में जो ऑप्शंस के बारे में मैं आपको बताया। F12 में हमने देखा कि यहाँ पे डिटेल कंडेंस और नरेशन, यहाँ पे हमारा एक्चुअली फॉर सम रीजन सम डेटा प्रॉब्लम की वजह से हैंग हो रहा था, इसके लिए आई एम नॉट ट्राइंग टू डू दैट अगेन, बट यू कैन अंडरस्टैंड इफ आई से शो नरेशन इट विल शो नरेशन। चाहिए तो हम देख सकते हैं यहाँ पे, शायद शो नरेशन से तो वो नहीं होना चाहिए हैंग, in case it does then I will not try it again. Let me just give a single try here. Oh yes, I got it. Why it's hanging? Yes, इसका रीजन मैं आपको बताना चाहूंगा ये हैंग क्यों हो रहा है। अगर आपको याद रहेगा, कुछ दिन पहले मैंने आपको नरेशन में आप पूरा एक्सेल शीट आप कॉपी कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो, मैंने कहा था, और वो चीज हमने की है। इसके लिए वो डेटा पुलिंग में काफी समय ले रहा है। सो and then same day I told you, this is just a trial. I have never experienced, or I have never encountered any kind of problem which can I come through. So this is the problem, this is the first problem. In case you are trying to copy lots of data into your narration field, this is bound to happen. So if I say I'll just come out of Tally now, I'll close this. Of course forcefully I have to come out. So again I'll start my Tally and I'll start sharing the screen with you. Okay, so this is my screen, share screen, and yeah. चलिए मैं फिर से ये RIL कंपनी में जाता हूँ। RIL डिस्प्ले डे बुक जहाँ पे हम थे 1/4, इसलिए हम एक ही दिन का ट्रांजैक्शन लेते तो शायद हमें तकलीफ नहीं देना। ये देखिए नरेशन बता रहा है मुझे, तो वो जो सेम रीजन था, बिल वाइज देंगे, कॉस्ट सेंटर बताएंगे, इन्वेंट्री पूछेंगे, एडिशनल डिस्क्रिप्शन, बैंक, ये सारे आप ऑप्शन यस करके देखिए आपको क्या मिलता है। शो फॉरेक्स ट्रांजैक्शन को आपने यस किया तो सिर्फ जो फॉरेन ट्रांजैक्शन है वही आपको दिखाई देंगे, नॉर्मल वाले ट्रांजैक्शन को ही दिखाई नहीं देंगे। देखिए डिटेल, सॉरी मैंने डिटेल बटन प्रेस नहीं किया था। यू नीड टू अंडरस्टैंड, जो भी आप यस करते हो, सेटिंग्स यस करते हो F12 के, उसके साथ आपको डिटेल बटन प्रेस करना है तो ही आपको ये डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलने वाली। ये देखिए, सो इस तरीके से आप डे बुक देख सकते हो। अभी डे बुक में फिर से जाता हूँ, इसके नीचे जो बटन से फॉर एग्जांपल ऑल्टर, इन केस कोई भी मुझे वाउचर पे, अभी मेरा जो वाउचर पे कर्सर है, ये वाउचर पे कर्सर है, इसको मैं ऑल्टर करना चाहता हूँ तो एंटर प्रेस करके आई कैन ऑल्टर द इंफॉर्मेशन। फर्स्ट वे, if I want to delete this, so I can just delete it, it gets deleted. बट डिलीटेड का डिसएडवांटेज मैंने आपको बताया था कि आप डिलीट करोगे तो आपके जो नंबरिंग है, वाउचर नंबरिंग, वो टॉस हो जाएंगे। और इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ अगर आपको डिलीट करना है तो बेटर यू कैंसिल इट। इसके जगह आप कैंसिल करो तो आपका नंबर है वो बना रहेगा। यहाँ पे देखिए 4 नंबर मेरा है, वो वैसे की वैसा है, लेकिन ये वाउचर जो है कैंसिल्ड स्टेट में है, यानी कि इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं। मैं नरेशन में डेफिनेटली लिख सकता हूँ कि किस रीजन से मैंने कैंसिल किया, क्योंकि अगर आपको स्टैट्यूटरी अथॉरिटी पूछती है कि आपने वाउचर कैंसिल क्यों किया, इसका आप हमें एक्सप्लेनेशन दो। यूजुअल जो स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रैक्टिस है उसमें जब भी आपको वाउचर इनवॉइस कैंसिल करना होता है, आपको उसका प्रिंट लेके उसको कैंसिल मार्क करना होता है, उसके वही इनवॉइस पे आपको रीजन लिखना पड़ता है कि क्यों आपने कैंसिल किया। सो दैट बिकम्स अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फॉर यू, राइट? सो दिस इज द वे कैंसिल वाउचर्स कैन बी मेंटेन। सेम वे मुझे डुप्लीकेट करना है। मैंने आपको डुप्लीकेट के बारे में कहा था कि एग्जाम्पल, ये हम लास्ट वाउचर देखते हैं, ये डिप्रिसिएशन का एंट्री है, इसको मैं डुप्लीकेट करना चाहता हूँ तो ऑल टू, यानी ये देखिए डुप्लीकेट कमांड है ऑल टू, और सपोज मैं इसका वैल्यू चेंज करके 2 लाख, और बाकी कुछ चेंज नहीं करना है तो आई कैन जस्ट प्रेस कंट्रोल एंड सेव। तो देखिए डिप्रिसिएशन का और एक एंट्री यहाँ पे आ गया, आप देख सकते हो
दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू डुप्लीकेट योर एंट्रीज। आप डुप्लीकेट करना है तो आप डुप्लीकेट कर सकते हो। अगर आपको एक कंपनी से दूसरी कंपनी में कॉपी करना है तो वो भी आप कर सकते हो, वो भी मैंने दिखाया था। लेकिन फिर से एक बार, बिकॉज sometimes many attendees tend to forget this kind of subject, so you need to just pay attention how do I do it. So जिस कंपनी से मुझे कॉपी करना है डेटा, सबसे पहले तो वो कंपनी में चूज करता हूँ, दैट इज टैली सॉफ्टवेयर डेमो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। एग्जाम्पल, इसमें से मुझे एक वाउचर कॉपी करना है। सो डिस्प्ले डेबिट में जाके मुझे ये वाउचर कॉपी करना है आज के तारीख में 30 तारीख। तो क्या कर रहा हूँ, देखिए अभी मेरा जो एक्टिव कंपनी कौन सा है, टैली सॉफ्टवेयर डेमो कंपनी। ये देखिए मेरा कर्सर आप देख सकते हो यहाँ पे, टैली सॉफ्टवेयर डेमो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। ये हमारा, ये देखिए यहाँ पे हमारा ये एक्टिव कंपनी है। अभी इसको फॉर एग्जांपल ये डुप्लीकेट करना है, तो ये डुप्लीकेट कमांड है ऑल टू, इसको मैं प्रेस कर रहा हूँ ऑल टू, राइट, ये ऑल टू में प्रेस कर रहा हूँ। तो देखिए वो वाउचर ओपन हो गया। यहाँ पे आप जो टाइटल बार है यहाँ पे देख सकते हैं, अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन एंड इन डुप्लीकेशन मोड। देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखा है, इट्स अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन बट थ्रू डुप्लीकेशन मोड। मैं डुप्लीकेशन मोड से इसको वाउचर को क्रिएट करना चाहता हूँ मेरे दूसरे कंपनी में। तो मैं यहाँ पे सिर्फ F3, ये आपको यहाँ पे राइट साइड में F3 कंपनी बटन है, इसको प्रेस करना है और इसमें आपको जो कंपनी में वो कॉपी करना है वो कंपनी चूज करना है। दैट्स इट, आपने ये कर लिया। अगर आपको इनकेस कुछ चेंज करना है, मे बी 500 का आपको 750 रुपया करना है, तो यू कैन मेक दैट माइनर चेंज एंड ओके। इसको जो कॉस्ट सेंटर वो कंपनी था, उनको ये पर्टिकुलर ये कंपनी में नहीं अवेलेबल, इसके लिए इट टुक मी बैक टू द अगेन द लेजर लेवल। तो देखिए मैंने ये चेंज किया। कंट्रोल ए करके सेव करना है तो कंट्रोल ए करके सेव करिए, या तो एंटर प्रेस करके आपको सेव करना है तो इस तरीके से करिए। ये सेव करिए, एक्सेप्ट यस करिए। तो ये देखिए ये अभी सेव हुआ रहेगा। अभी तो अपना कंट्रोल फिर से टैली सॉफ्टवेयर डेमो कंपनी पे है। F3 करके मैं RIL में जाऊँ और ये डेट जो है 30 तारीख मुझे लेना है, तो क्योंकि हमने 30 तारीख में एंटर किया है। Sorry, I think it got copied in 20. I did not change the date. I'm so sorry. I needed to change the date, but I did not change the date. So ये देखिए 750 वाला यहाँ पे कॉपी हो गया। Now I'll change the date. So इस तरह आप डेट चेंज करके, इस तरह आप डेट चेंज करके आपका वाउचर डुप्लीकेशन करा सकते हो। सेम में मुझे कोई भी मास्टर कॉपी करना है तो आप अपना मास्टर भी कॉपी कर सकते हो। अकाउंट्स इन्फो लेजर ऑल्टर में जाके मास्टर चूज करके आप मास्टर कॉपी कर सकते हो। ये हो गया अकाउंटिंग मास्टर। सेम इन्वेंटरी मास्टर्स भी आप कर सकते हो, राइट। आई विल कम बैक टू माय डेबुक ऑप्शन। तो डेबुक मुझे अगर ऐड वाउचर करना है, ओके, अज्यूम ऐड वाउचर करना है। मेरे 29 तारीख में कितने वाउचर है, 1 2 3 4 5 6। सॉरी, इसको मैं डिलीट करना चाहूंगा। डिप्रिसिएशन का जो एंट्री मैंने अभी पास किया था, मैं इसको डिलीट करता हूँ। ऑल डी प्रेस किया, ऑफ कोर्स देयर इज अ बटन डिलीट, या तो की कॉम्बिनेशन इज ऑल डी। तो 29 में अगर ये 5 वाउचर है, तो देखिए यहाँ पे कैसे फर्क होता है, आप देख सकते हो। अभी अगर मुझे इंसर्ट करना है, सॉरी ऐड करना है वाउचर, तो 29 तारीख में ऐड करना है, यहाँ पे 29 लिखू और पेमेंट वाउचर ले लू, एक कन्वेंस वाउचर ले लू, से 250 रुपीज। ये ऐड होता है वाउचर एट द एंड। देखिए 29/5 यस। तो यहाँ पे ऐड होता है। ऑफ कोर्स ये जो सीक्वेंस मेंटेन की जाती है, पहले कॉन्ट्रा पेमेंट जर्नल, बट डेटाबेस में देखूं तो ये डेटाबेस में एकदम एंड में ऐड हो चुका है। अगर ऑलरेडी कुछ पेमेंट वाउचर है, फॉर एग्जांपल मुझे और एक ऐड करना है, चलिए अभी हमारे पास पेमेंट वाउचर नहीं था, इस वजह से वो कॉन्ट्रा के बाद दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी मुझे फिर से एक वाउचर ऐड करना है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस से 1000 रुपीज, एंड आई एम जस्ट सेविंग दिस। तो ये क्या करेगा, इसके बाद में ऐड होगा, यानी एग्जिस्टिंग मेरा जो पेमेंट वाउचर है उसके बाद मेरा वाउचर ऐड होने वाला है, राइट। इस तरह से ऐड वाउचर से आपको
आप एंड में वाउचर ऐड कर सकते हो। मैं रिपीट करता हूँ, आप जो भी वाउचर ऐड करोगे वो एंड में ऐड होगा। लेकिन कभी कभार मुझे दिक्कत आती है, मैं अभी फिलहाल पेमेंट वाउचर ही चूज कर रहा हूँ यहाँ पे फ्रॉम ऑल द डेट्स, राइट। अभी मुझे एक रिक्वायरमेंट है कि नहीं सर, मुझे एक पर्टिकुलर वाउचर एंटर करना है, लेकिन उसका जो वाउचर नंबर है वो 11 होना चाहिए। अभी मैं ऐड करूंगा तो उसका वाउचर 29 तारीख में अगर ऐड करता हूँ तो उसका वाउचर नंबर 12 हो जाएगा, क्योंकि मैं ऐड कर रहा हूँ, राइट। मैं अगर ऐड कर रहा हूँ तो देखिए वाउचर नंबर 12 दिखाई दे रहा है मुझे, देख लीजिए यहाँ पे दिख रहा है। तो मुझे 12 वाउचर नहीं चाहिए, क्योंकि क्या गलती से मैंने वो डिलीट किया था और मैंने प्रिंट भी ले चुका हूँ, वो ऑडिट हो चुका है। सर मुझे वहां पे ही इंसर्ट करना है 11 नंबर की जगह। तो आपको क्या करना है, आपका कर्सर 11 नंबर के वाउचर पे लाना है और इंसर्ट वाउचर, ये देखिए इंसर्ट वाउचर बटन नीचे आपको दिखाई दे रहा है, वो प्रेस करिए तो देखिए मेरा वाउचर नंबर क्या आ गया, 11, राइट। अभी आप लिख सकते हो आपको जो भी आपको वाउचर एंट्री करनी है। फॉर एग्जाम्पल स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस से 2000 रुपीज एंड टू कैश 2000 रुपीज। देखिए क्या हो गया, ये जो स्टाफ वाउचर वाला वाउचर था वो 11 हो गया, ये इंसर्ट हो गया। इस तरह से आप वाउचर इंसर्ट कर सकते हो। आपको डेबुक में आके एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आप वाउचर अपना कर्सर ला सकते हो और इंसर्ट वाउचर करके आप इसको ऐड कर सकते हो वो नंबर कैप्चर करने के लिए, राइट। सो दिस इज द वे डेबुक वर्क्स फॉर यू। फिर से कुछ डेबुक के और जो जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा, इंसर्ट वाउचर हो गया, ऐड वाउचर हो गया, अभी रिमूव लाइन करना है मुझे। फॉर एग्जांपल देखिए मैंने ये रिपोर्ट तो ले लिया, फॉर एग्जांपल एक F4 करके फिर से मैं सारे पेमेंट वाउचर यहाँ पे लेता हूँ। अभी इसमें से एक लाइन जो है मुझे रिमूव करनी है, रिमूव यानी परमानेंटली नहीं, टेम्पररीली मेरे रिपोर्टिंग पर्पस के लिए रिमूव करनी है। तो मैं सपोज ये लाइन रिमूव कर, तो इसको मैं स्पेस बार, अगर एक ही लाइन है तो आपको स्पेस बार दबा के सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, आप स्ट्रेट अवे रिमूव कर सकते हो। ये देखिए रिमूव हो गया रिमूव। अभी आपको रिस्टोर करनी है वही लाइन, तो आप इसको रिस्टोर कर सकते हो रिस्टोर लाइन से। ये देखिए रिस्टोर हो गया। लेकिन चलिए एट अ टाइम मुझे 4 लाइन रिमूव करनी है, तो क्या करना है मुझे, ये देखिए ये लाइन रिमूव करनी है, तो स्पेस बार मैं प्रेस करके इसको चूज करता हूँ, स्पेस बार प्रेस करके मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। दूसरा लाइन ये करना है, तीसरा लाइन ये करना है, चौथा लाइन। तो एक साथ मुझे 4 लाइन रिमूव करना है, तो आई कैन रिमूव दिस वे। इस तरह से मैं सारे एक साथ सिलेक्ट करके रिमूव कर सकता हूँ। रिस्टोर ऑल करेंगे तो रिस्टोर सारे फिर से हो जाएंगे। सेम वे मुझे काफी सारे वाउचर एट अ टाइम डिलीट करने हैं, तो आई कैन डिलीट इट एट अ टाइम। ये देखिए डिलीट, डिलीट ऑल सिलेक्टेड, ये सारे डिलीट हो जाएंगे। वेरी डेंजरस कमांड, यूज इट वाइजली। आई रिपीट माई वर्ड्स, टैली ने आपको ऑप्शन दिया है बट यूज इट वाइजली, दिस इज वेरी डेंजरस कमांड। आप एक साथ सारे डिलीट भी कर सकते हो यहाँ पे, राइट। सो ये देखिए सिलेक्ट करने के यहाँ पे लिखे, इसके लिए लिखा है स्पेस यानी सिलेक्ट, स्पेस स्पेस मैंने स्पेस बार यानी सिलेक्ट, एंड कंट्रोल स्पेस यानी सिलेक्ट ऑल। कंट्रोल और स्पेस बार दबाओ तो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, कंट्रोल स्पेस बार दबाऊंगा तो सारे अनसिलेक्ट हो जाएंगे। दिस इज द वे यू कैन डू द सिलेक्शन ऑफ वाउचर्स इन Daybook, right? We will move on to the next. Sorry, yeah. One more thing was there. There is an extract command. In case मुझे पेमेंट वाउचर कॉलमनर देखना है, तो यहाँ पे कॉलमनर कमांड का ऑप्शन है, दैट इज F5। ये F5 कॉलमनर है, आप इसको प्रेस करके कॉलमनर इंफॉर्मेशन देख सकते हो, वही वाउचर्स की जो आपने अभी देखे थे। शायद ये फिर से हैंग हो जाएगा फॉर द रीजन, सेम रीजन जो हमने एक्सेल कॉपी की थी उस वजह से। सो वी विल टेक अ वेरी स्मॉल पोर्शन आउट ऑफ इट, या तो हम दूसरा वाउचर टाइप लेते हैं जिसकी वजह से अपना हैंग नहीं होगा। वेट अ मिनट, चूज करता हूं मैं फिर से कंपनी रॉयल डिस्प्ले डे बुक एंड ऑल द वाउचर्स। इस पे से सिर्फ सिलेक्टिव में पेमेंट नहीं है, मैं सपोज सेल्स लेता हूं, ऑल सेल्स वाउचर्स, और इसको मैं कॉलमनर करना चाहूँ तो ये देखिए कॉलमनर कर सकता हूँ।
इसमें काफी सारी आपको यस नो की इंफॉर्मेशन पूछी जाती है। आपको पार्टी एड्रेस देखना है, वाउचर टाइप देखना है, वाउचर नंबर देखना है, वाउचर रेफरेंस नंबर देखना है, कंसाइनी बायर नेम देखना है, जीएसटी नंबर देखना है उनका, टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर, सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन, पैन नंबर, सीएसटी नंबर, वाउचर नरेशन, ऑर्डर डिटेल्स, रिसीट डिस्पैच डिटेल्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिटेल्स, शिपिंग डिटेल्स, कोड, क्वांटिटी डिटेल्स, ये सारी चीजें मुझे देखनी है। तो ये मैं इस तरह से कॉलमनर फॉर्मेट में वही चीजें अपने स्क्रीन पे देख सकता हूँ। इस तरीके से मैं कॉलमनर फॉर्मेट में अपने डे बुक को, या तो अपने सेल्स रजिस्टर को, क्योंकि इसको मैं सेल्स रजिस्टर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि डे बुक में जाके मैंने सिर्फ सेल्स वाउचर्स को फिल्टर किया है, सो इट इज एज गुड एज सेल्स रजिस्टर नाउ। क्योंकि आप अभी सेल्स रजिस्टर देखोगे थोड़ी देर में, तो ये आपको सेम चीजें वहां पे दिखाई देंगी, राइट। सो ये काफी अच्छा रिपोर्ट है, कॉलमनर रिपोर्ट। यहाँ पे देख लीजिए, सारी इंफॉर्मेशन एक ही स्क्रीन पे आपको कॉलमनर फॉर्मेट में दिखाई दे रही है। अभी इसका यूज कहाँ पे हो सकता है? काफी जगह आप इसको रिपोर्टिंग के लिए यूज कर सकते हो। जैसे मुझे एक्सपोर्ट करना है, एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट बटन पे मैं क्लिक करके एक्सेल में देखिए मेरा पाथ पूछ रहा है कि कहाँ पे, कौन से पाथ पे आपको सेव करना है। दैट इज एक्सपोर्ट लोकेशन इज दिस, योर आउटपुट फाइल नेम इज दिस, योर आउटपुट शीट नेम, यानी एक्सेल की जो शीट नेम रहती है उसका शीट नेम आपका ये होगा। आपको पाइवट, क्या है, आपको पाइवट टेबल के लिए इसको यूज करना है तो आप यस करिए, नो नहीं करना है तो नो करिए। आपको अपडेट एग्जिस्टिंग फाइल करना है, यानी आपके ऑलरेडी ये नाम की फाइल अगर टैली में ये पर्टिकुलर पाथ पे, लोकेशन पे ऑलरेडी है, अवेलेबल है, तो क्या आप उसको अपडेट करना चाहोगे? यस या नो। अपडेट करोगे तो एक सेपरेट शीट में आप डेटा अपडेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने ऑलरेडी एक फाइल बनाई है debit.xls, इसमें आपने मंथ वाइज ये बनाए हैं शीट नेम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो मैं मई महीने का मुझे डेटा अपडेट करना है, तो सेम फाइल नेम देके मैं सिर्फ शीट अपडेट कर लूंगा, राइट। एक्सेल फॉर्मेटिंग, यस, आई विल से यस। ओपन एक्सपोर्टेड फाइल, यानी जब भी वो एक्सपोर्ट होती है तो आपको इमीडिएटली इसको ओपन करना है या नहीं? मुझे करना है, तो आई विल से यस टू इट। आई विल सेव इट इंफॉर्मेशन, दिस इंफॉर्मेशन, एंड आई विल से यस टू इट। एक्सपोर्ट, यस। ये देखिए अभी एक्सपोर्ट हो रही है इंफॉर्मेशन, और आपके सामने अभी खुल भी जाएगी। ये देखिए एक्सेल, जैसे आप स्क्रीन पे देखते थे, देख रहे थे, सेम वे आप अभी एक्सेल में आप ये देख सकते हो। ये देखिए मैं न्यू शेयर के जरिए आपको ये आपको एक्सेल फाइल बताना चाहूंगा। सेम एक्सेल फाइल जो आपने स्क्रीन पे देखा था, वही आप अभी देख रहे हो अपने एक्सेल फॉर्मेट में। अभी इसमें क्यों एक ही ट्रांजैक्शन क्यों एक्सपोर्ट हुआ है? क्योंकि मैंने जब भी एक्सपोर्ट किया था, उसको मैं फिर से री एक्सपोर्ट करता हूँ। जब भी मैंने एक्सपोर्ट किया था, उस वक्त मैंने एक सेटिंग दी थी। वहां पे एक सेटिंग डिफाइन की थी। तो सेटिंग थी ये, शो फॉरेक्स ट्रांजैक्शन, यस। उस वजह से सिर्फ फॉरेक्स ट्रांजैक्शन वाली एंट्री ही मुझे दिखाई दी थी। अभी मैं फिर से एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, आपको शेयर करके बताता हूँ। ये ओपन भी हो जाएगी। ये देखिए, इस तरह से आपको सारे ट्रांजेक्शन आपकी स्क्रीन पे दिखाई देते हैं। अभी आपको एक्सेल में जो भी ये इंफॉर्मेशन के साथ जिस तरीके से और रिपोर्ट बनाना है, मॉडिफाई करना है, मैनिपुलेट करना है, आप इसको इसके साथ कर सकते हैं। सो दिस इज द वे you can export all of your reports from Tally to Excel, right? इसके बाद हम मूव करते हैं अकाउंट बुक सेक्शन पे। यहाँ पे ऑफकोर्स यहाँ पे और एक बात बताना भूल गया। एक था रिपोर्ट जो था एक्सपोर्ट, सॉरी, एक्सट्रैक्ट। सो एक्सट्रैक्ट था ये एक्सट्रैक्ट बटन। ये आपको मैं ऑफकोर्स जब हम सेल्स समरी, सेल्स रजिस्टर में जाएंगे तभी मैं आपको बताता हूँ, तो यू विल गेट इट, गेट टू नो हाउ द एक्सट्रैक्ट वर्क्स फॉर यू।
इसके बाद में है डिस्प्ले अकाउंट बुक्स। अकाउंट बुक्स में हमारा फर्स्ट ऑप्शन आता है कैश एंड बैंक बुक। सो आई डोंट थिंक मुझे कैश एंड बैंक बुक के बारे में आपको कुछ बहुत ज्यादा जानकारी देने की जरूरत है, क्योंकि कैश एंड बैंक बुक इज नथिंग बट नॉर्मल योर कैश और बैंक। ये ग्रुप के अंदर जो लेजर्स है उनके इनका जो समरी है, ये आपको समरी यहाँ पे दिखाई देता है। देखिए ये समरी आपके सामने आ गई है। तो अगर आप इसको देखना चाहो तो आप इसमें एंटर कर सकते हो कि कैश के ट्रांजैक्शन मेरे कैसे हुए, कितने। तो ये पहले तो आपको समरी लेवल से आपको मंथली लेवल तक लेके जाता है, और मंथली लेवल से जाके आप इसको अंदर वाउचर लेवल तक जा सकते हो। जब भी आप मंथली लेवल पे रहते हो तो यहाँ पे एक्सेप्शन का बटन है। एक्सेप्शन यानी अगर इसमें कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी है, नेगेटिव कैश है, तो वो आपको बताएगा एक्सेप्शन थ्रू, राइट। बाद में है अपना बैंक अकाउंट्स। बैंक अकाउंट्स में जाते हो तो ये देखिए बैंक अकाउंट आपको पूरी तरह से यहाँ पे दिखाई देते हैं, लेकिन बैंकिंग सेक्शन में हम सब ये फीचर्स सीखने ही वाले हैं। फिर भी मैं आपको रिकंसिलिएशन जो वेरी इंपॉर्टेंट फीचर है, शायद आप आपने एकेडमिक्स में पढ़ा हो या तो अपने एक्चुअल वर्क लाइफ में इसको यूज किया हो, तो रिकंसाइल इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फीचर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर फॉर बैंकिंग मॉडल। या तो बैंक का रिकंसिलेशन करने के लिए काफी आपको ये यूजफुल होता है। सो यू कैन गो टू रिकंसिलेशन ऑप्शन, F5 इज द रिकंसाइल बटन। ये देखिए मैं एक पर्टिकुलर मंथ में जाके इसको रिकंसाइल करता हूँ। तो रिकंसिलेशन, सो बेसिकली फॉर न्यू बिगिनर्स आई वुड लाइक टू टेल यू व्हाट डू यू मीन बाय रिकंसिलेशन। तो रिकंसिलेशन क्या होता है? रिकंसिलेशन यानी नथिंग बट, देखिए कि कभी कभार अभी तो अपना जो चेक इशूइंग ऑफ चेक्स ये काफी कम हुआ है। अभी एवरीथिंग इज गेटिंग ऑनलाइन, दैट इज डिजिटल मोड। पहले कैसा था, मैनुअल मोड था, लेकिन वी आर शिफ्टिंग अवर सेल्स टू डिजिटल मोड। यानी हम नेफ्ट पेमेंट कर रहे हैं, आईएमपीएस पेमेंट कर रहे हैं, पेटीएम पेमेंट्स कर रहे हैं, यूपीआई पेमेंट्स कर रहे हैं। सो इस तरह से हम डिजिटल ट्रांजैक्शन ज्यादा कर रहे हैं। तो शायद अभी स्लोली स्लोली रिकंसिलिएशन की भी जरूरत ना पड़े, लेकिन अभी जैसे फिलहाल जब तक हमारा ये चल रहा है, चेक मोड्स चल रहा है, तो चेक मोड्स में हमें डेफिनेटली रिकंसिलिएशन की जरूरत पड़ती है। तो रिकंसिलिएशन क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि 25 तारीख को, आज क्या तारीख है, 30 तारीख, 25 तारीख को सपोज मैंने चेक इशू किया है। 25 तारीख को मैंने चेक बनाया है, इशू भी नहीं किया, बनाया है से मे बी IFJ सप्लाईज प्राइवेट लिमिटेड। ये जो IFJ सप्लाई प्राइवेट लिमिटेड है, इनका चेक मैंने बनाया है, राइट। और ये मैंने 27 तारीख को उनको दे दिया, उनके हाथ में दे दिया। 27 तारीख को उनके हाथ में गया है, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री हो गई। देखिए 1,14,000 की एंट्री हो गई यहाँ पे। चेक नंबर 100,002 यानी 100,002 नाम का जो चेक है, नंबर का चेक है, मैंने IFJ सप्लाईज को इशू किया है 1,14,000 रुपए का। लेकिन आज 30 तारीख होने तक मेरे बैंक में वो क्लियरेंस के लिए नहीं आया। क्लियरेंस के लिए क्या क्या हुआ कि मैंने चेक तो इश्यू किया है, लेकिन उन्होंने चेक अपने बैंक में जमा नहीं किया। वो जब तक मैंने दिया हुआ चेक अपने बैंक में जमा नहीं कर दे, वो क्लियरेंस के लिए मेरे बैंक में नहीं आने वाला। और तब तक क्या होगा, देखिए मेरे अकाउंट में तो डेबिट हो चुका है, ये पेमेंट मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैं एंट्री कर चुका हूँ, यानी ये डेबिट हो चुका है, राइट। लेकिन अगर वो क्लियर नहीं हुआ है मेरे बैंक में, तब तक मेरा अकाउंट 1,14,000 से कम नहीं होने वाला। मैं रिपीट करता हूँ, जब तक वो चेक क्लियरेंस के लिए मेरे बैंक में नहीं आएगा, तब तक मेरे अकाउंट में उतना वो डेबिट या उतना अमाउंट माइनस नहीं होने वाला। तो इस वजह से क्या होता है कि मेरा बैंक बैलेंस और मेरा बुक बैलेंस ये मैच नहीं करेगा। तो यही होता है रिकंसिलिएशन की बैलेंस एज पर बैंक, आपके बैंक के हिसाब से आपका बैलेंस ये है, लेकिन आपके बैंक के हिसाब से आपका बैलेंस ये है। इसका रीजन क्या है, कुछ एंट्रीज जो चेक्स मैंने इशू किए हैं वो अभी तक क्लियर नहीं हुए, या तो जो चेक्स मुझे मिले हैं, मैं बिकॉज ऑफ लॉकडाउन में बैंक में नहीं जा पाया, मैंने डिपॉजिट ही नहीं किया। डिपॉजिट नहीं किए तो वो क्लियर नहीं हुए, तो इस वजह से ये यहाँ पे आपको चेक, ये जो चेक्स है ये आपको दिखाई नहीं दे रहे, राइट। आई मीन दोज आर नॉट क्लियर। दिस इज द वे रिकंसिलिएशन वर्क्स।
अभी क्या कभी कभार और एक आपको जानकारी देना चाहूंगा कि अगर आपने डेटा स्प्लिट किया है, अगर आपने डेटा स्प्लिट किया है तो उसमें आपको एक डिफिकल्टी आती थी पहले, यानी ऑलमोस्ट 4 साल 5 साल पहले ये टैली ने फीचर इंट्रोड्यूस किया। तब तक क्या होता था कि अगर आपने डेटा स्प्लिट किया है तो जो चेक आपने प्रीवियस ईयर के डेटा में है यानी इशू किए है या तो एंट्री पास की है, तो वो आपको ओपनिंग बैलेंस में डिफरेंस आ जाता था, ओपनिंग रिकंसिलिएशन में डिफरेंस आता था। इसलिए टैली ने यहाँ पे ओपनिंग बीआरएस का ऑप्शन दे दिया, ओपनिंग बीआरएस दैट इज ओपनिंग बैंक रिकंसिलिएशन। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक चेक 25 मार्च को, सॉरी, एक चेक 25 मार्च 20 को दिया है, पर्टिकुलर्स मे बी आई से IFJ सप्लायर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये इनको और एक चेक मैंने इशू किया है। ये क्या था, विड्रॉल, यानी मैंने इशू किया है चेक। चेक का नंबर लिखना चाहो तो कुछ भी चेक का मैं नंबर लिख सकता हूँ। सपोज अमाउंट इसका 10,000 रुपया था तो 10,000। चेक रेंज मुझे नहीं देना है, अगर देना है तो आप दे सकते हो। फिर आपको ये 10,003 या सर 10,004 शायद हमने यूज किया, 5, ये मैं चेक देना चाहूंगा। ओके, 3 अवेलेबल है तो 3 ही लेता। ये रिमार्क्स का कॉलम है, सॉरी, चेक का तो नीचे इंफॉर्मेशन है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे एक चेक की डिटेल में लिख सकता हूँ। और देखिए ये मेरे ओपनिंग बैंक रिकॉर्ड, देखिए यहाँ पे क्या आ गया, ओपनिंग बीआरएस, यानी ये जो चेक था इसका एंट्री मेरे मौजूदा बुक्स में अवेलेबल नहीं है। यानी जो अवेलेबल बुक्स ऑफ अकाउंट्स है मेरे 1 अप्रैल 20 से लेके आज तक, इसमें ये एंट्री नहीं है। ये जैसे ये एंट्री है ना, ये एंट्री नहीं है, ये क्या है, ये मेरा ओपनिंग बीआरएस का इंफॉर्मेशन है। ये ओपनिंग बीआरएस में मैंने डिफाइन किया है कि ये चेक मैंने इश्यू किया है, लेकिन वो अभी तक क्लियरेंस के लिए नहीं आया है। इस तरीके से आप अपना ओपनिंग बीआरएस भी इसमें मेंटेन कर सकते हो, राइट। एक साथ काफी सारे चेक प्रिंट करना है तो मल्टी चेक प्रिंटिंग का ऑप्शन है, तो मल्टी चेक प्रिंटिंग दे सकते हो आप। एक साथ देखिए यहाँ पे पूछा है चेक प्रिंटिंग पेंडिंग चेक्स, आप प्रिंट यस करोगे तो वो एक के बाद दूसरा ऐसे इस तरह से एक साथ चेक प्रिंट। ये आपको कहाँ पे ऑप्शन यूजफुल होता है, अगर आपको काफी सारे चेक्स इशू करने हैं, फॉर एग्जांपल डिविडेंड चेक्स, वेरियस कंपनीज को क्या डिविडेंड चेक अगर इशू करने हैं, अभी तो फिलहाल तो नेट ट्रांसफर होता है, बात अलग है। लेकिन अगर पहले की जमाने की मैं बात करूँ तो डिविडेंड चेक्स इशू करने होते थे, सैलरी चेक इशू करने होते थे। एग्जांपल मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 1,000 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, तो 1,000 एम्प्लॉइज का चेक बना के मुझे उनको इश्यू करना है, तो प्रिंट होने के लिए समय तो देना पड़ेगा। तो शायद मैं ये बैकएंड में रात के दिन में ये एक्टिविटी प्रोसेस के लिए लगा दूं, तो क्या होता है कि मैंने 1,000 चेक सिलेक्ट कर लिए और प्रिंट ऑल करके सारे चेक्स मैंने एक बंच वहां पे रख दिया इसमें प्रिंटर में, और एक एक प्रिंट हो रहा है। इस तरह से मैं सारे चेक्स एक साथ प्रिंट का ऑप्शन दे सकता हूँ। डिपॉजिट स्लिप प्रिंट के बारे में तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपको डिपॉजिट स्लिप बनाना है। तो ये देखिए डिपॉजिट स्लिप प्रिंट आपका ऑलरेडी प्रिंटेड है तो नहीं आएगा, ये है। ये अगर बनाना है डिपॉजिट स्लिप तो शायद ये भी प्रिंट हो चुका है, वन सेक। शायद रीप्रिंट का ऑप्शन हमें अभी वो नहीं बता रहा है। कंट्रोल F6, और यस यहाँ पे शो ऑल का ऑप्शन है, देखिए। तो इसको मैं प्रिंट करना चाहूँ तो प्रिंट कर सकता हूँ इस तरीके से, ये देखिए। इस तरीके से मैं अपना कैश डिपॉजिट स्लिप भी प्रिंट कर सकता हूँ, या तो चेक डिपॉजिट का स्लिप है तो वो भी मैं प्रिंट कर सकता हूँ, राइट।
सो इस तरह आप डिपॉजिट स्लिप प्रिंट कर सकते हो। डेली ब्रेकअप चाहिए तो आपको डेली ब्रेकअप का ऑप्शन है कि आपका डेली बैलेंसेस, ये देखिए कैसा मूवमेंट हुआ है, आपका ओपनिंग बैलेंस कितना था, आपने 21 तारीख को 22 तारीख को कौन सा ट्रांजैक्शन किया है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन था, बाद में 26 तारीख को आपका कुछ डेबिट और क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो आप एंटर करोगे तो आपको वो दिन के ट्रांजैक्शन दिखाई देते हैं, राइट। This is the way you can look at the daily breakup option. Same way मैंने columnar format आपको ऑप्शन दिखाया है, columnar format का ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल है, तो in case you want to look at it as a columnar format, you can just go and press enter, so it will show you columnar format here. Sorry, वो hang होने के बाद it will show you my previous screen, so just wait for that. I think better to delete that entry. I need to identify and I'll get it deleted. So we'll not be losing time, in terms of slowed down tally. So I'll identify and delete. Okay, so I'm going back to display account books, cash and bank books, and then we have got this IDWay bank account, and I showed you various option column now. And in case you want to include post-dated transactions for a given period, it will include the post-dated transaction as well. Related reported inventory reports, accounting report, ये सारे options हम already देख चुके हैं, लेकिन in case you want to explore more, you can always go here and from one report you can jump to other report. ये जो available reports है, you can jump onto those reports. You can try exploring. अगर आप practice नहीं करोगे तो शायद आपको काफी सारी चीजें समझ में नहीं आएंगे. तो I'll just repeat once again. Sorry, I think my screen sharing is off. सॉरी. तो मैं आपको बता रहा था कि आई वाज इन बैंक बुक, एंड बैंक बुक में आपको रिलेटेड रिपोर्ट्स है, तो आप रिलेटेड रिपोर्ट्स को क्लिक करते हैं तो आपको काफी सारी रिलेटेड रिपोर्ट्स आते हैं. बिल वाइज डिटेल, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, लेजर एनालिसिस, सेम वे इन्वेंटरी रिपोर्ट से. अगर आप यहाँ से ये रिपोर्ट से जंप करके इन्वेंटरी रिपोर्ट्स पे जाना चाहो, कोई भी सिलेक्टेड इन्वेंटरी रिपोर्ट्स पे जाना चाहो, तो आपको ये ऑप्शन चूज कर सकते हो. सेम वे आपको अकाउंटिंग रिपोर्ट से आप इन पे जाना चाहो तो आप जस्ट क्लिक ऑन टू दैट. सो सेम रिपोर्ट से यू कैन स्ट्रेट अवे जंप ऑन टू दैट रिपोर्ट. इट मीन्स मुझे एस्केप करके बाहर आने की जरूरत नहीं, एंड देन अगेन इंटर प्रेस करके वो रिपोर्ट तक जाने की जरूरत है. सपोज मुझे स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट पे जाना है, तो आई कैन स्ट्रेट अवे गो टू स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग रिपोर्ट ऑन विच आई एम एट प्रेजेंट. एस्केप करिए तो यू विल बी बैक ऑन टू दैट रिपोर्ट. तो ये था मेरा कैश एंड बैंक बुक. कैश एंड बैंक बुक अगर सेम आपको न्यू कॉलम से लेके अगर कुछ आपको कंपैरिजन करना है तो कंपैरिजन का ऑप्शन है. ऑटो कॉलम करके अगर आपको मे बी मंथली आपके बैलेंसेस देखने हैं तो मंथली बैलेंसेस भी देख सकते हो इस तरह से, कंपैरिजन सॉर्ट ऑफ कंपैरिजन पर्पस के लिए. तो दैट दोस ऑल ऑप्शंस, व्हाट आर द कॉमन ऑप्शंस वी हैव सीन न्यू कॉलम के, ये आपको ऑलमोस्ट सारे मंथली समरी स्क्रीन पे अवेलेबल है. बाद में आता है लेजर. लेजर यानी क्या होता है, जितने सारे हमने लेजर बनाए हैं, ये देखिए अकाउंट्स इन्फो में लेजर और अल्टर, ये सारे लेजर हमने बनाए हैं. मेरे ख्याल से बार बार मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दोहराई है कि ये लेजर्स कैसे बनाए जाते हैं और लेजर्स एज अ मास्टर कैसे ट्रांजैक्शन में यूज करते हैं. तो अगर ये लेजर में मैंने जितने ट्रांजैक्शन किए हैं वो मैं देखना चाहता हूँ, तो आई कैन ऑलवेज गो टू डिस्प्ले अकाउंट बुक्स एंड लेजर ऑप्शन, और लेजर में जाके मुझे कोई भी एक पर्टिकुलर पार्टी का या तो कोई भी एक पर्टिकुलर लेजर देखना है तो आई कैन चूज इट. मैं यहाँ पे पीरियड ऑप्शन चूज कर सकता हूँ. पीरियड ऑप्शन चूज करके इसको मैं एक साथ सारे अप्रैल से लेके आज के दिन तक के जितने भी ट्रांजैक्शन हुए वो मैं देख सकता हूँ. अगर मुझे डिटेल देखना है, यानी कि ये ऑलमोस्ट आपको ये डे बुक की तरह ही दिखाई देगा. ये क्या है, ऑलमोस्ट डे बुक की तरह ही ये रिपोर्ट आपको दिखाई देगा. फर्क इतना ही है कि डे बुक में सारे वॉचेस थे, इसमें फिल्टर्ड है. फिल्टर्ड यानी एक पर्टिकुलर लेजर पे फिल्टर्ड वो इंफॉर्मेशन है. ये देखिए इस तरीके से आप डिटेल ट्रांजैक्शन देख सकते हो. F12 करके आप इसमें अगर बिल वाइज डिटेल देखना चाहो, कॉस्ट सेंटर डिटेल, इन्वेंटरी रिपोर्ट, ये सारे देखना चाहो तो आप यहाँ पे यू कैन से यस टू इट एंड यू कैन व्यू द
लेजर व्यू दिस वे। आप इस तरह से आपका लेजर देख सकते हो। ओके, अभी और एक ऑप्शन है, F12 में मैं जाता हूँ, शो रनिंग बैलेंस, यानी इनका रनिंग बैलेंस जैसे आपके बैंक के पासबुक में होता है। आप देखते हो बैंक के पासबुक में आपको डिपॉजिट एंट्री, विड्रॉल एंट्री और रनिंग यानी उस दिन का बैलेंस कितना है। तो आप यहाँ पे इस तरीके से रनिंग बैलेंस देख सकते हैं। ये देखिए, इसको हम रनिंग बैलेंस कहते हैं। 6,40,000, 5,80,000, 647, यानी ये जो 3,60,000 था उसमें 280 जमा हो गया तो 6,40,000 हो गया, इसमें से 56 माइनस हो गया तो 584 हो गया, फिर से 63,000 ऐड हो गया तो 647 हो गया। इस तरह से आप इसमें रनिंग बैलेंस देख सकते हो। अगर ये कस्टमर का कांटेक्ट देखना चाहो तो यहाँ पे कांटेक्ट का ऑप्शन है कि जो आपने, अगर आपको याद रहेगा फिर से कि मैं हमेशा जब भी ये स्क्रीन पे गया हूँ, मैंने आपको कहा कि सर प्लीज कीप अ हैबिट, ऑलवेज डेवलप अ हैबिट टू राइट दिस इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन लिखने का आप कभी भी एक अपने आप में आदत डलवा दो, क्योंकि क्या ये इंफॉर्मेशन आपको काफी यूजफुल है। जब भी आप चाहो एक्सट्रैक्ट करना चाहो, एक्सेल में एक्सट्रैक्ट करना चाहो, तो यू विल बी एबल टू डू दैट। ये देखिए यहाँ पे आपको कांटेक्ट का ऑप्शन है, तो कांटेक्ट में भी आप कर सकते हैं, राइट। So I was into this ledger. I'll go back to the ledger and देखिए यहाँ पे फिर डेली ब्रेकअप आता है। अगर आपको डेली ब्रेकअप जो मैंने अभी अभी आपको बैंक में दिखाया था, सेम वे आप डेली ब्रेकअप आप यहाँ पे भी देख सकते हो। अगर आपको मंथली देखना है तो आप मंथली देख सकते हो। अगर कॉलमनर देखना है, कॉलमनर का मैं ऑलरेडी आपको सेम एग्जांपल लेके मैं आपको बता चुका हूँ सेल्स रजिस्टर का, बट ये अपना लेजर का कॉलमनर देख रहा है तो सेम ऑलमोस्ट रिपोर्ट इज सेम एवरीवेयर, राइट। ये रिपोर्ट सेम ही होता है। जो भी आपने फील्ड्स यूज किए हैं टैली में, वो वाउचर एंट्री के लिए वो आपको फील्ड अप होके यहाँ पे कॉलमनर रिपोर्ट में दिखाई देते हैं। इसके बाद में है बिल वाइज। बिल वाइज तो मैं आपको हमेशा ऑलमोस्ट मतलब एवरी डे हम बिल वाइज रिपोर्ट पे एक बार तो आते हैं, और यहाँ पे देख लीजिए ये बिल वाइज रिपोर्ट है। अभी ये बिल वाइज रिपोर्ट में आके अगर मुझे एक साथ कुछ बिल्स पे करने हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर से एक बार बता रहा हूँ। ये 3 बिल मुझे पे करने हैं, तो ये देखिए ऊपर लिख के आता है बिल सिलेक्टेड फॉर 4,65,000 रुपीज। सॉरी, ये पेमेंट नहीं करना है, रिसीव करना है। बेसिकली इट्स अ डेटर कस्टमर, तो मैं इनका वाउचर बना सकता हूँ बिल सेटलमेंट। और देखिए यहाँ पे कौन से बैंक में मैं जमा कर रहा हूँ, तो वो देखिए ऑटोमेटिकली आपका वाउचर यहाँ पे बन के रेडी हो गया है विद ऑल दिस बिल। जो मैंने बिल सिलेक्ट किए थे वो बिल को लेके यहाँ पे मेरे वाउचर चूज हो चुके हैं। अभी मैं इसमें आपके इंफॉर्मेशन मतलब कस्टमर ने जो भी चेक इशू किया है उसकी इंफॉर्मेशन मैं लिख सकता हूँ, बैंक लिख सकता हूँ जो भी है, ब्रांच मे बी से अंधेरी मुंबई। ये इस तरह से मैं अपनी इंफॉर्मेशन सेव कर सकता हूँ। नारेशन लिखना है तो नारेशन लिख लीजिए। तो जैसे मैंने वो लिख दिया, वो 3 वाउचर से या तो 3 बिल से वो हट चुके हैं। अगर मैं F12 करके यहाँ पे जाऊँ एंड आई से ऑल शो ऑल बिल्स, तो मुझे सारे बिल जो क्लियर हो चुके हैं वो भी दिखाई देंगे। ये देखिए जहाँ पे पेंडिंग अमाउंट 0 है वो मेरे क्लियर बिल्स है, राइट। सो दैट्स इट आई थिंक। ये लेजर में अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन देखना है तो इस तरह से आप लेजर में आके सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हो। लेजर में और कुछ तो है नहीं। तो इसके बाद में हम जाते हैं ग्रुप समरी। ग्रुप समरी में क्या होता है, आपको जब भी मैंने कंपनी क्रिएट की थी RIL कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, उसमें आपको मैंने कहा था जब भी मैं ब्लैंक कंपनी क्रिएट करता हूँ तो उसमें 28 ग्रुप्स बाय डिफॉल्ट आते हैं और 2 लेजर्स बाय डिफॉल्ट टैली क्रिएट करके आपको देती है। तो ये सारे ग्रुप्स है, ये ऑलरेडी डिफॉल्ट लेजर्स क्रिएटेड है, ग्रुप्स क्रिएटेड है। और ये ग्रुप्स की मैं इंफॉर्मेशन देखना चाहूँ तो मैं देख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे करंट एसेट्स देखना है, तो करंट एसेट्स में देख जाके ये देखिए करंट एसेट्स में मुझे ये सारे जितने लेजर है करंट एसेट्स में मैंने ग्रुप किए हुए। एग्जांपल के तौर पे सैलरी लेटर्स को कंट्रोल एंटर करके, मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करके मैं अल्टरेशन मोड में जा सकता हूँ। ये देखिए यहाँ पे अंडर क्या है, करंट एसेट्स, यानी ये जो ग्रुप है या लेजर है इट बिलोंग्स टू करंट एसेट्स। तो ये करंट एसेट्स की समरी मुझे यहाँ पे दिखाई देते हैं। अगर मैं डिटेल्ड ऑप्शन पे क्लिक करूँ तो इस तरह से मुझे ये डिटेल इंफॉर्मेशन भी दिखाई दे रही है।
राइट। करंट एसेट्स के सारे जितने थे इस तरह आप ग्रुप समरी देख सकते हो। और ग्रुप के वाउचर्स देखने हैं तो F7 करके आप यहाँ पे वाउचर्स देख सकते हो। तो वो ग्रुप के रिलेटेड जितने, सॉरी ये वर्क नहीं कर रहा है बेसिकली, ये वर्क तो कर रहा है क्योंकि उसके सारे वाउचर मुझे दिखाई दे रहे हैं जिसमें भी वो करंट एसेट्स का लेजर यूज हुआ है, वो सारे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई मीन टू से। अगर मुझे मंथली समरी देखना है तो मंथली समरी में देख सकता हूँ करंट एसेट्स की, या तो मुझे वाउचर्स देखने तो मैं वाउचर देख सकता हूँ। न्यू कॉलम, अल्टर कॉलम, ये सारे ऑप्शंस तो है ही। रिलेटेड रिपोर्ट्स, ये सारे जो कॉमन बटन है, आप एक बार प्रैक्टिस कर लो तो आपको सारे जगह वो अप्लाई हो सकते हैं। आप किस तरह से यूज कर सकते हो वो आप देख सकते हैं। इसके बाद में मैं मूव करता हूँ ग्रुप वॉचर्स। अब भी मैंने आपको जो वॉचर्स बताए सेम में मैं ग्रुप वॉचर्स यही से सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मुझे करंट एसेट्स के ग्रुप वॉचर्स देखने हैं, यानी वो ग्रुप को बिलोंग करने वाले लेजर्स के वॉचर्स देखना चाहूँ, तो ये देखिए सारे वॉचर्स की लिस्टिंग मुझे यहाँ पे आ गई है। देखिए ग्रुप करंट एसेट्स। अब भी हमने थोड़ी देर पहले रिपोर्ट देखा था, वो कौन सा था, लेजर के वॉचर्स देखे थे। यानी एक पर्टिकुलर लेजर जो एबीसी कस्टमर प्राइवेट लिमिटेड लेजर था, उसको सिलेक्ट करके सिर्फ उसके वाउचर डिस्प्ले हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे हमें जो दिख रहा है वो ये ग्रुप के वाउचर्स है। You need to excuse me for half a minute. Just a minute. I need to take an important call. Just a moment. Okay. So I hope you are clear with the report. जो आपके सामने रिपोर्ट है, ये किस तरह से वर्क करता है, ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आ रहेगा। ये रिपोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? एग्जाम्पल फॉर ग्रुप के वॉचर्स में एक साथ देखना चाहता हूँ। जो ग्रुप की टोटल दिख रही है वो मुझे रीवेरीफाई करनी है, वो परफेक्टली दिखाई दे रही है या नहीं। दिखाई दे रहे तो उसको वॉचर में देखना चाहूँ तो इस तरीके से मैं ग्रुप के वॉचर्स यहाँ पे देख सकता हूँ, राइट। इसके बाद में आता है सेल्स रजिस्टर, परचेस रजिस्टर। काफी इंपॉर्टेंट दो मोस्ट यूज्ड, आई कैन से मोस्ट यूज्ड जो रिपोर्ट्स है, ये इसमें ये दो बिलोंग करते हैं, सेल्स रजिस्टर और परचेस रजिस्टर। सेल्स रजिस्टर और परचेस रजिस्टर दोनों दिखने में सेम है, आई मीन दोनों फंक्शनैलिटी में भी सेम है, सिर्फ नेचर अलग है उनका। सेल्स रजिस्टर यानी सेल्स ट्रांजैक्शन है, परचेस रजिस्टर यानी परचेस ट्रांजैक्शन है। तो सेल्स रजिस्टर कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए सेल्स रजिस्टर पे मैं एंटर करके यहाँ पे जैसे मैंने सेल्स रजिस्टर को एंटर किया तो टैली हैज टेकन मी इनसाइड अ स्क्रीन विच शोज मंथली समरी, यानी मंथ की समरी मुझे बता रहा है। और इसमें अगर मैं फिर से आगे एंटर कर लूं तो मुझे वो मंथ के जितने भी सेल्स के वाउचर है उसकी लिस्टिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इतने सारे जो सेल्स के वाउचर्स है ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, राइट। इसमें अभी जैसे आपका डे बुक था, ये दिस इज ऑलमोस्ट अ रेप्लिका ऑफ डे बुक। आपने जो डे बुक देखा था इसका ही ये एक रूप है, स्वरूप है। सारे ऑप्शन आपको सिमिलर मिलेंगे जो डे बुक के हैं। जैसे F12 के ऑप्शन आप देखो तो ये भी आपको सारे सिमिलर मिलने वाले हैं, राइट। ये देखिए काफी ऑप्शन है। शो कॉलमनर रजिस्टर, जो आप बाहर हमें बटन है F5 करके, वो शो ग्रॉस प्रॉफिट एस्टिमेट, अगर ग्रॉस प्रॉफिट के एस्टिमेट आपको देखने हैं। शो कॉस्ट बेस्ड ऑन स्टॉक वैल्यूएशन, फॉर्मेट डिटेल देखना है, कंडेंस नरेशन देखना है, क्या बिल वाइज देखना है, क्या कॉस्ट सेंटर। सारी जो इंफॉर्मेशन हमने देखी थी वहां पे ये हमें यहाँ पे इस तरह से दिखाई देती है, जो आप चूज करके देखिए। अगर इसमें से कुछ इंफॉर्मेशन में निकाल दो, क्योंकि नरेशन वगैरह तो हम देख चुके हैं, बिल वाइज भी देख चुके हैं, इसको मैं नो कहता हूँ। तो इस तरह ये मेरी इंफॉर्मेशन आती है। और इसमें देखिए मुझे ट्रांजैक्शन वैल्यू कितनी है, इसमें ग्रॉस रेवेन्यू कितना है, कॉस्ट मेरा कितना था, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है। मतलब ये एस्टिमेटेड, एक रफली कैलकुलेटेड आपका ग्रॉस प्रॉफिट है बेस्ड ऑन द टैली हैज इनपुट्स रिलेटेड टू दो स्टॉक सेल्स ट्रांजैक्शंस। अभी ये सेल्स में जो भी स्टॉक आइटम आपने सेल किया हुआ है उसका परचेस कॉस्ट क्या था, उसके बेस के ऊपर आपका कॉस्टिंग निकाल के उसने आपको ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे सेल्स रजिस्टर में बता रहा है, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज द सेल्स रजिस्टर के F12 ऑप्शन से, जो भी हमने बताया।
ये कॉलमनर रजिस्टर तो मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ, फिर से मैं दिखा रहा हूँ। आई एम जस्ट गोइंग ऑन द सेल्स रजिस्टर, आई एम सिलेक्टिंग अ मंथ। ये मंथ में जाने के बाद कॉलमनर ऑप्शन में आपको चूज करके बता रहा हूँ। ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे देखनी है, तो मैं इसको यस 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 करते जा रहा हूँ। एंड फाइनली आई कैन सी दैट रिपोर्ट। ये देखिए, एबीसी कस्टमर प्राइवेट लिमिटेड, कंसाइनी बायर नेम, उसका एड्रेस, वाउचर टाइप। ये जो इंफॉर्मेशन थी यूजुअली आपको स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में काफी यूजफुल होती है, और अभी जीएसटी में शायद कम होगी, लेकिन जब भी हमारा वैट था या तो सेल्स टैक्स हम यूज करते थे, उस वक्त आपको ये सारी जानकारी आपको डिपार्टमेंट को देनी पड़ती थी, और उस वक्त ये रिपोर्ट काफी इम्पोर्टेंस या तो एक काफी इम्पोर्टेंट रिपोर्ट जाना जाता था, राइट। ये देखिए, पैन नंबर, सीएसटी, सारी जानकारी आपको एक ही रिपोर्ट में मिल रही है, जो आप अपने डिपार्टमेंट को या तो आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट को या तो आपके टैक्स कंसल्टेंट को, जिनको इनकी समरी बनानी है, इसके बेस के ऊपर कुछ रिपोर्ट बनाने हैं, तो आप उनको दे सकते हैं। ये देखिए, ये सेल्स वाउचर में कौन सा लेजर यूज हुआ है, वो लेजर के सामने उतने अमाउंट, फॉर एग्जाम्पल केएलएम कस्टमर प्रोफेशनल फीस, ये देखिए। सो इसमें प्रोफेशनल फीस है और सीजीएसटी, जो लेजर इफेक्ट हुए उसके सामने वो अमाउंट बताई देगी, आपको डिस्प्ले करेगा। प्रोफेशनल फीस पे इतना है, सीजीएसटी एसजीएसटी इतना है। ये आप लेजर में देखोगे तो इसका जो टोटल ग्रॉस टोटल 6,40,000 है, इसमें सेल्स अकाउंट में इतना अमाउंट गया है, सीजीएसटी में इतना गया है, एसजीएसटी में इतना गया है। तो ये रिपोर्ट और एक तरीके से आपको इंपॉर्टेंट क्यों है, जब आप जीएसटी पेमेंट करते हो, जीएसटी पेमेंट करते हो, आपका सीजीएसटी कितना है, एसजीएसटी कितना है, आईजीएसटी कितना है पर मंथ, आप यहाँ पे टोटलिंग पे देख सकते हैं, आप एक री वेरीफाई कर सकते हैं। राइट, आप यहाँ पे री वेरीफाई कर सकते हो आपका कितना है वो। सो इस तरीके से आप सेल्स रजिस्टर आप कॉलमनर फॉर्मेट में देख सकते हो। नो कॉलम करूँ तो टैली मुझे बैक टू वही स्क्रीन पे लेके जाएगा। बाद में आता है एक्सट्रैक्ट। आप देखिए, ये रिपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रैक्ट फॉर द रीजन, अगर आपको एक्सट्रैक्ट में काफी सारी जानकारी एक्सट्रैक्टेड फॉर्मेट में चाहिए, तो आप यहाँ एक्सट्रैक्ट में आके इस तरह से ये रिपोर्ट देख सकते हैं। अभी एक्सट्रैक्ट में आपको जो रिपोर्ट है, सेल्स रजिस्टर में जितने वाउचर्स यूज हो चुके हैं, सेल्स रजिस्टर में जितने वाउचर्स यूज हो सके उसमें देखिए आपको, ये एबीसी कस्टमर है, एचआईजी कस्टमर है, केएलएम कस्टमर है, इनका सन्ड्री डेटर्स जो है इनका ग्रुप है, और ये जो लेजर्स है एक बाइफर्केशन आ जाता है। सेम में सेल्स लेजर कौन से यूज हुए, ये सेल्स लेजर की लिस्टिंग मिलती है, जैसे कैश ट्रेड डिस्काउंट यूज किया है उसको कितना गया है, सेल्स अकाउंट में प्रॉपरली कितना गया है, सेल्स एलजी प्रोडक्ट में कितना गया। सो इन केस यू आर यूजिंग multiple sales products, then you have got you can get the bifurcation of each sales register, sorry, each sales ledger belonging to sales group. सेम में करंट लायबिलिटीज में कौन सा ग्रुप यूज हुआ है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस से सब ग्रुप है, इसके अंदर शिफ्ट एंटर करो तो मुझे सीजीएसटी और एसजीएसटी में कितना कितना अमाउंट गया हुआ है इसकी लिस्टिंग मिलती है। और डायरेक्ट इनकम का जो ग्रुप है, इसमें प्रोफेशनल फीस ये इतना मेरा जमा हुआ है। ये इस तरह से आपको एक्सट्रैक्ट मिलता है। काफी अच्छा और ब्यूटीफुल रिपोर्ट है, आप यूज करना चाहो कहाँ पे तो डेफिनेटली, मतलब काफी लोग ये इसकी जानकारी न होने की वजह से they try to write it down excel में, वो just figures copy paste करते हैं and then try to work out it, but this report is readily available, बहुत अच्छा रिपोर्ट है। इसमें F12 में क्या ऑप्शन मैं आपको बताना चाहूंगा। F12 में देखिए, ये तो हो गया एक्सट्रैक्ट ऑफ रजिस्टर। अभी मुझे इसका इन्वेंट्री एक्सट्रैक्ट चाहिए। ये क्या है, लेजर एक्सट्रैक्ट। अभी मैं कहता हूँ ये है लेजर एक्सट्रैक्ट, यानी सिर्फ लेजर की इंफॉर्मेशन मुझे दिखाई दे रही है। इसमें मुझे इन्वेंट्री बाइक चाहिए, तो मैं इसको यस कहता हूँ और सेव करके, ये देखिए इस तरह से इन्वेंट्री वाइज मेरा, फॉर एग्जांपल मुझे एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट निकालना है कि सेल्स मेरा कितना हुआ है, सेल्स कितना हुआ है फॉर अ गिवन पीरियड। ये मंथ मई मंथ में मेरा सेल आउटवर्ड, क्योंकि आप स्टॉक समरी देखोगे, स्टॉक समरी में क्या होता है, आपको ओपनिंग बैलेंस का कॉलम दिखता है। ये देखिए, यही से मैं स्टॉक समरी में जाता हूँ तो आपको एक आइडिया आ जाएगी स्टॉक समरी की। F12 में जाओ तो इसमें देखिए ओपनिंग बैलेंस, इनवर्ट्स, आउटवर्ड्स, इस तरह से आपको 4 कॉलम दिखाई देते हैं। लेकिन ये इनवर्ट में शायद मेरा मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल भी आने के चांस है। ये देखिए, मैन्युफैक्चरिंग इसमें प्योरली सेल्स नहीं है,
इसमें सेल्स भी है, क्रेडिट नोट भी है और मैन्युफैक्चरिंग भी है। तो ये सारी लिस्टिंग एक साथ आ रही है यहाँ पे, जो मुझे नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ फिल्टर जो ट्रांजैक्शन है, यहाँ पे जो सेल्स रजिस्टर है वही मुझे देखना है। तो इस तरह से मुझे सेल इन्वेंट्री वाइज मिल सकता है। Yeah. So sorry. What I was saying, I mean, this particular report, it's very different from the stock summary report. Stock summary में आपको जो दिखाई देता है, it includes everything. Outward में शायद आपका stock transfer हुआ हो, आपका manufacturing हो गया हो, इसके लिए वो outward हुआ यानी consumption हुआ हो, और सेल्स, ये तीनों का मिक्सअप होके आपको आउटवर्ड में दिखाई देता है। लेकिन ये जो है, ये देखिए यहाँ पे ऊपर ऑफ टाइटल के नीचे देख सकते हो, एक्सट्रैक्ट ऑफ ऑल सेल्स वाउचर्स, एक्सट्रैक्ट ऑफ ऑल सेल्स वाउचर। और ये एक्सट्रैक्ट में आपको यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन दिखाई देती है कि 510 नंबर आउट हो गए हैं, इतना रेट है, इतना अमाउंट है। या सो प्योरली आपके जितने भी सेल्स वाउचर का एक्सट्रैक्ट हुआ, इसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, राइट। तो ये था मेरा सेल्स रजिस्टर, वेरी इंपॉर्टेंट वन। एंड ये जो शो प्रॉफिट है, मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ डे बुक में। ये शो प्रॉफिट करेंगे तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट अपना एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट, वो आपको बताई दे रहा है। देखिए, कॉस्ट इज इक्वल टू एक्चुअल क्वांटिटी इनटू क्लोजिंग रेट। सो ट्रांजैक्शन या वैल्यू, ट्रांजैक्शन वैल्यू यानी मेरे सेल्स की वैल्यू 2,80,000। ये देखिए 2,80,000 ये बाहर दिखाई दे रहा है, 2,80,000 ग्रॉस रिवेन्यू। इसमें 2.5 लाख मेरा ग्रॉस रिवेन्यू, क्योंकि कॉस्ट मेरी थी 1,11,000। सो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 1,38,000 इतनी यहाँ पे बताई दे रहा है। ये 2,50,000 मेरा ग्रॉस रिवेन्यू था, एंड उसका कॉस्ट जो था 1,11,000। सो मेरा जो प्रॉफिट है, ये ऑलमोस्ट 1,38,000 मेरा ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, राइट। ये अभी ये कॉस्ट उसने कहां से निकाला, तो ये देखिए, कॉस्ट इज इक्वल टू एक्चुअल क्वांटिटी इनटू क्लोजिंग रेट। जो आपका क्लोजिंग कॉस्ट था, क्लोजिंग रेट था, उसके बेस पे उसने क्लोजिंग रेट ये यहाँ पे डिराइव किया है। और इस तरह से मुझे एक एस्टिमेटेड मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है मेरे सेल्स ट्रांजैक्शन का, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको प्रॉफिट नहीं देखना है तो आप हाइड प्रॉफिट यहाँ पे कर सकते हैं। परचेस रजिस्टर सेम है, जैसे हमने सेल्स रजिस्टर देखा, सेम वे ये परचेस रजिस्टर, सारे ऑप्शन सेम है, सिर्फ वो सेल था और ये परचेस है। वहां पे लिस्ट ऑफ सेल्स वाउचर था, यहाँ पे लिस्ट ऑफ परचेस वाउचर्स थे। यहाँ पे भी कॉलमनर ऑप्शन है, यहाँ पे भी एक्सट्रैक्ट ऑप्शन है, सारे ऑप्शन आपके सेम है, राइट। सो नथिंग एक्स्ट्रा टू बी टोल्ड अपार्ट फ्रॉम द नेचर ऑफ वाउचर टाइप, दैट एक सेल्स है और एक परचेस है। we'll move on। जनरल रजिस्टर, जनरल रजिस्टर एक स्टैटिस्टिक्स वाउचर है। ये देखिए, जनरल रजिस्टर में आपको जनरल रजिस्टर है, डेबिट नोट रजिस्टर और क्रेडिट नोट। जनरल में जाओगे तो ये स्टैटिस्टिक्स का आपको रिपोर्ट दिखाई दे रहा है। सेम रिपोर्ट यहाँ पे आपको जनरल रजिस्टर में दिखाई देगा। ये देखिए, दो वाउचर है इसमें। सेम वे अगर मैं स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट देखूं, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स में आपको देखिए जर्नल जे। तो इस तरह से मैं ये सेम रिपोर्ट, देखिए यहां से वो रिपोर्ट चालू हुआ था, सेम रिपोर्ट में वहां पे भी देख सकता हूं। ओके, सो डिस्प्ले अकाउंट बुक्स, जर्नल रजिस्टर एंड डिस्प्ले। इसमें दो दिखाई दे रहा है क्योंकि इसमें मैं प्योरली जनरल देख रहा था और यहाँ पे फॉरेक्स जर्नल भी इंक्लूडेड, इसके लिए यहाँ पे दो ट्रांजेक्शन दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से आप जनरल रजिस्टर एक साथ, जितने भी जर्नल वाउचर से एक साथ कंबाइंड होके आप देख सकते हो। सेम वे डेबिट नोट रजिस्टर है, क्रेडिट नोट रजिस्टर है, सेम, नथिंग, आई मीन इट्स सिमिलर टू व्हाट यू हैव सीन इन द स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट। ये सेम रिपोर्ट आपको वहां पे समराइज लेवल पे दिखती है और बाद में वाउचर लेवल पे दिखाई देती है। इसके बाद में वी विल मूव ऑन टू द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में अब हमारा
आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट, सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आउटस्टैंडिंग, मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात होती नहीं है। यस, सो वी हैव गॉट द आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट इस चीज के लिए है, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए टू कलेक्ट द मनी इज इंपॉर्टेंट। बिजनेस तो होता है, बिजनेस कैसे होता है, आप सेल्स ट्रांजैक्शन थ्रू सप्लाई करते हैं, लेकिन कलेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। अगर आउटस्टैंडिंग आपका टाइम पे नहीं आ रहा है तो इट विल इम्पैक्ट योर कैश फ्लो, आपके ऑर्गेनाइजेशन कैश फ्लो के लिए, वर्किंग कैपिटल में वो काफी इफेक्ट करता है। इसलिए आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आउटस्टैंडिंग में हमें 4 ऑप्शन है, रिसीवेबल, पेबल्स, लेजर एंड ग्रुप। रिसीवेबल यानी जितने भी रिसीवेबल है वो एक ही साथ लिस्टिंग हमें आती है। अभी आपको एक जानकारी यहाँ पे और एक मैं देना चाहूंगा, अगर मैं एक लेजर क्रिएट कर लूं, अकाउंट्स इन्फो लेजर क्रिएट, ओके, एक सप्लायर का लेजर मैं क्रिएट कर रहा हूं। ये देखिए यहाँ पे मैं एक सप्लायर का लेजर क्रिएट कर रहा हूं, एलिमेंट सप्लायर प्राइवेट लिमिटेड, ये फॉर एग्जांपल मेरे सप्लायर है, इनको मैं सेंट्री क्रेडिटर्स ग्रुप में डलवा रहा हूँ। सेंट्री क्रेडिटर्स, राइट, सप्लायर है तो सेंट्री क्रेडिटर्स में ही आएगा। इनको मैं ओपनिंग बैलेंस दे रहा हूँ, ओपनिंग बैलेंस सपोज 50,000 रुपया है, लेकिन लेकिन ये क्रेडिट बैलेंस नहीं, ये डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस यानी क्या, इनको मैं एडवांस पेमेंट कर चुका हूँ, राइट। एग्जाम्पल, ये एलिमेंट सप्लायर्स, सपोज लॉकडाउन शुरू होने से पहले 20 मार्च को मैंने इनके साथ डील कर लिया, सर आप मुझे ये गुड्स सप्लाई करने वाले हो। उन्होंने कहा ठीक है सर, वी विल सप्लाई, हम आपको बाय 31st आपको सप्लाई कर देंगे, आप हमें 50 रुपया 1000 रुपया एडवांस दीजिए। तो 50,000 रुपए की एडवांस एंट्री डलवाने के लिए यहाँ पे मैंने 50,000 उनको एडवांस दिया है, और एज ऑन 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2020 को वो एडवांस वैसे के वैसे पड़ा है, क्योंकि मुझे अभी तक उनका गुड्स डिलीवर तो हुआ नहीं, गुड्स डिलीवर हुआ नहीं, लेकिन उनका एडवांस पड़ा है, इसके लिए वो डेबिट बैलेंस में है। ये देखिए डेबिट बैलेंस में मैं इसको कहता हूँ कि 20 मार्च को मैंने A123 ये रेफरेंस द्वारा इनको एक एडवांस पेमेंट दिया था, राइट। तो ये एडवांस पेमेंट की मैंने लिस्टिंग यहाँ पे डाल दी। अभी मैं फिर से वो रिपोर्ट में जाता हूँ, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स। ये देखिए अभी आप, ये मैंने एंट्री क्यों की, क्योंकि जो रिसीवेबल में जो है मुझे क्रेडिटर्स की एंट्री भी दिख रही है। मैं रिपीट करता हूँ, रिसीवेबल में मुझे क्रेडिटर्स की एंट्री भी रिफ्लेक्ट हो रही है। इसका रीजन यह है कि ये मुझे अमाउंट रिसीवेबल है, ये मुझे अमाउंट आना है। कल मेरा ट्रांजैक्शन कैंसिल हो जाए, उन्होंने गुड्स सप्लाई नहीं किया, तो ये मुझे उनसे रिकवर करना है एलिमेंट सप्लाई से, इसके लिए वो रिसीवेबल्स में मुझे दिखाई दे रहा है, राइट। अभी और एक ऑप्शन है आप इसमें देखेंगे, तो एक पेबल, अगर रिसीवेबल को आपको चेंज करना है पेबल में, तो ये पेबल का रिपोर्ट दिखाई देगा, रिसीवेबल का देखना है तो रिसीवेबल, जैसे बाहर से आप देखो तो ये पेबल का रिपोर्ट है, सेम वे आप अंदर से भी पेबल के रिपोर्ट पे जा सकते हो, आप यहाँ से टॉगल कर सकते हो, राइट। एज वाइज अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, इन केस आपको बैंक को स्टेटमेंट सबमिट करना है। काफी काफी सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, आप बैंक से ओडी फैसिलिटी लेते हो, ओडी फैसिलिटी यानी ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट यानी आपके पास बैंक के पास आपका नॉर्मल करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट में आप पैसा जमा करते हो, चेक इश्यू करते हो, विड्रॉल करते हो, सब कुछ करते हो, जिसपे आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता, करंट अकाउंट पे आपको कोई भी इंटरेस्ट बैंक देती नहीं, राइट। तो ये हो गया करंट अकाउंट। लेकिन अभी मुझे काफी समय में, रनिंग बिजनेस में क्या होता है कि हमें बार बार वर्किंग कैपिटल की कमी महसूस होती है, हमें बार बार एक वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि हमारा काफी सारा आउटस्टैंडिंग स्टॉक में फंसा है, हमारा काफी सारा जो पैसा है वो स्टॉक परचेस करने में हमारा ब्लॉक हुआ है, या तो हमने जो सप्लाई किया है वो हमारे कस्टमर से पैसा नहीं आया है, तो इससे क्या होता है, मेरे वर्किंग कैपिटल पे इफेक्ट हो जाता है। इस वक्त हमें बैंक ओडी फैसिलिटी देती है। वो बैंक क्या कहती है कि आपका जो भी कस्टमर का आउटस्टैंडिंग है, इसका आप मंथली रिपोर्ट दे दो, एट द एंड ऑफ द मंथ कितना आउटस्टैंडिंग है उसका रिपोर्ट दे दो, और आपका पास स्टॉक कितना है उसका रिपोर्ट आप दे दो। आप अगर वो रिपोर्ट दोगे तो जो भी विद इन 60 days रिकवरेबल है, आई रिपीट
जो भी डेटर्स का या जो भी कस्टमर का पैसा विद इन 60 डेज के अंदर है, यानी बिल देने से विद इन 60 डेज के अंदर है, उसके ऊपर हम आपको 50% या 60% अमाउंट आपको ओडी फैसिलिटी में देंगे। ओडी यानी ओवरड्राफ्ट। अगर आपका बैलेंस निगेटिव में जाता है तो वो लिमिट तक आपको हम पैसा विड्रॉ करने की या तो पेमेंट इश्यू करने की परमिशन देते हैं। इसको कहते हैं हम ओडी फैसिलिटी। और ये ओडी फैसिलिटी पे बैंक हमें इंटरेस्ट चार्ज करता है जितने दिन तक हम वो एक्स्ट्रा पैसा विड्रॉ करते हैं। एक्स्ट्रा यानी मेरा बैलेंस नील हो गया है, करंट अकाउंट में जो मैंने पैसा जमा किया, विड्रॉ किया, ऐसे करके मेरा बैलेंस जीरो हो गया, जीरो के ऊपर एक ओवरड्राफ्ट हो गया, जितना मुझे बैंक में अलो किया है वो ओडी में यूज कर रहा हूं, तो ये ओडी फैसिलिटी पे बैंक मुझे इंटरेस्ट चार्ज करता है। और बैंक क्या कहती है, मुझे आप मंथली रिपोर्ट दे दो एज वाइज, तो ये मुझे एज वाइज का बटन ही देखिए यहाँ पे, एज वाइज। एज वाइज में जाके आप एजिंग बाय बिल डेट या एजिंग बाय ड्यू डेट, तो बैंक जानना चाहते हैं कि 0 to 30 डेज में कितना मेरा आउटस्टैंडिंग फंसा है, 30 to 60 में कितना है, 60 to 90 में कितना, 90 एंड अबो वो तो बैड डेट्स ही मानते हैं, लेकिन वो यानी कि वो कंसिडर नहीं करना चाहते। तो इस तरह से आप बैंक को रिपोर्ट सबमिट कर सकते हो। रेडीमेड रिपोर्ट है, आपको इसमें कुछ भी वर्क करने की जरूरत नहीं है। आपके पास एज ऑन 30 मई 2020 ये मेरा रिपोर्ट है, जो बिलो 30 डेज है, 30 to 60 डेज के बीच इतना है, 60 to 90 इतना है, एंड अबो 90 इतना है। इस तरह से आप अपना बिल्स रिसीवेबल का आप बिल वाइज एज वाइज रिपोर्ट निकाल सकते हो। अगर आपको बिल पार्टी वाइज देखना है तो यहाँ पे बिल पार्टी वाइज यानी बिल का जो भी पार्टी वाइज एक टोटल और पार्टी वाइज इनके बिल्स, इस तरह से भी आप ये रिपोर्ट निकाल सकते हो। काफी अच्छा रिपोर्ट है। बिल वाइज देखना है तो प्योरली बिल वाइज, बिल पार्टी वाइज देखना है तो ग्रुप पार्टी को एक ग्रुप में डाल देता है, एंड वो जो पार्टी की बिल है एक ग्रुप के नीचे आपको ट्रांजैक्शन बताता है। इस तरीके से आप बिल पार्टी वाइज रिपोर्ट देख सकते हो रिसीवेबल्स में, एंड सेम वे पेबल्स में आप देख सकते हो, रिपोर्ट सेम ही है, राइट। और इसमें कुछ F12 में ऑप्शन है, इंक्लूड पोस्ट डेटेड ट्रांजैक्शन। मैंने इसके बारे में भी आपको कहा था कि पोस्ट डेटेड ट्रांजैक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो गल्फ रीजन में हमने देखा था कि पोस्ट डेटेड ट्रांजैक्शन पे सारी इंडस्ट्री चलती है। पोस्ट डेटेड ट्रांजैक्शन में क्या होता है कि आप जो भी पीडी चेक लेते हो और उसके बेस के ऊपर आप उनकी टेम्पररी क्रेडिट लिमिट बढ़ाते हो अपने कस्टमर्स की या अपने सप्लाई अपने कस्टमर्स की। शो बिल्स इन फॉरेन एक्सचेंज, अगर कोई फॉरेन एक्सचेंज के बिल देखना है तो यस करिए, तो सिर्फ आपको फॉरेन एक्सचेंज के जो भी पेंडिंग बिल है वो दिखाई देंगे। सॉरी, पेंडिंग तो नहीं है, ओडी में नहीं, तो यहाँ पे सारे क्लियर बिल है, राइट। सो इसमें है नहीं कुछ दिखाने लायक। तो इस तरह से आप F12 में जाके बिल्स इन फॉरेन एक्सचेंज, ओपनिंग अमाउंट देखना है तो यस करेंगे, ड्यू ऑन देखना है तो यस करेंगे, ओवर ड्यू डेज एज बिल इन क्रेडिट डेज, यस। शो ओवर ड्यू यूजिंग बिल डेट, आपको ओवर ड्यू बिल डेट से देखना है, ड्यू डेट से देखना है। ये बाय डिफॉल्ट ड्यू डेट से दिखाता है, तो आपको ड्यू डेट बिल डेट से देखना है तो यस करिए, तो बिल डेट से दिखाएंगे। सिर्फ ओवर ड्यू बिल देखना है या पेंडिंग, यानी सारे पेंडिंग देखना है जो अभी तक ड्यू नहीं हुए। ड्यू नहीं हुए यानी मैंने बिल अगर 25 तारीख को रेज किया है और उनको 30 दिन का मैंने क्रेडिट दिया है, 30 दिन का मैंने क्रेडिट दिया है कि 30 दिन के बाद आप पेमेंट करो, तो 25 तारीख 25 मई को दिया है, तो वहां से 30 दिन अंदाजन अपने 24 जून तक आते हैं, तो 24 जून तक मैं उनको पेमेंट पूछूंगा नहीं, लेकिन वो मेरे पेंडिंग बिल्स में चले जाते हैं। ओवर ड्यू बिल्स यानी जो ओवर ड्यू हुए हैं, इसके बाद में भी वो ओवर हुए, वो ओवर ड्यू बिल हो। शो ऑर्डर नंबर इन डिटेल फॉर्मेट, कंटिन्यू शो नरेशन, ये सारी चीजें आप यहाँ पे दिखा सकते हो। सो इस तरह से आप अपना रिपोर्ट कॉन्फ़िगर कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो, मेल कर सकते हो, ईमेल भी आप कर सकते हो। अगर आपको ईमेल करना है तो ये देखिए ईमेल का ऑप्शन है। ईमेल में जाके आप अपना सर्वर चुने हैं, कौन सा आपका अकाउंट है, जीमेल है तो जीमेल, हॉटमेल है तो हॉटमेल, याहू है तो याहू, या तो आपका खुद का डोमेन है। फॉर एग्जांपल माय कंपनी नेम इज एप्सॉफ्ट सॉल्यूशंस, सो एप्सॉफ्ट का जो डोमेन नेम है इट इज appsoftindia.com। तो मेरा जो सर्वर एड्रेस आएगा दैट आई कैन पुट इन मे बी smtp@ जो भी मेरा सर्विस प्रोवाइडर का जो सर्वर एड्रेस दिया है मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करूंगा। SSL सिक्योर्ड जो आता है, सिक्योर्ड लेयर आता है, इसको हम SSL कहते हैं, जो यानी सिक्योर साइट आते हैं, तो
If you want to use that SSL, then you can say yes to it. Select yes if you are using a secure SMTP server. Use SSL on standard port. ये just एक सिक्योरिटी वाइज या तो टेक्निकली जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो आपको फिल करना होता है. फ्रॉम आपका कंपनी नेम आता है, फ्रॉम ईमेल आईडी या सिक्योरल स्टॉक क्लियर, राइट, सॉरी. Yes, perfectly all right, Dipu. In fact, I had forgotten this thing. So SSL secured socket layer is the name of the SSL. And then you have got from company name, from email ID, username for authentication. यानी आप अगर Gmail यूज कर रहे हो, in case you are using Gmail, तो ये Gmail का SMTP एड्रेस तो ले लिया. अभी Gmail के SMTP एड्रेस में ये मेरा कंपनी नेम है और ये मेरा ईमेल आईडी है. तो आपको अगर Gmail सिलेक्ट किया है तो आपका एड्रेस भी Gmail वाला ही देना है. यू कैनॉट हैव द कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स. यानी मैं कहूंगा कि मैं मेरा खुद का सर्वर यहाँ पे यूज करना चाहता हूँ, तो दैट इज नॉट पॉसिबल. यू नीड टू यूज सेम जो भी ईमेल सर्वर दिया है वही ईमेल आईडी आपको यूज करना है. एंड देन यू हैव गॉट यूजर नेम फॉर ऑथेंटिकेशन, वो भी सेम. यानी कि आप जब भी जीमेल पे लॉग इन करते हो, आप गूगल क्रोम पे जाके आप जीमेल क्लिक करते हो, अगर आपने कभी भी उसमें यूजर नेम पासवर्ड नहीं डाला है तो आपको ये इंफॉर्मेशन पूछी जाती है कि आपका यूजर नेम क्या है. तो यू एंटर योर क्रेडेंशियल्स लाइक से my ID is arunwbhagat@gmail.com. सो ये मैं टाइप करूंगा, इसका मैं पासवर्ड टाइप करूंगा. I hope I don't remember now, but I'm just trying to put in my password. Then आपको फॉर्मेट कैसे चाहिए? PDF, ASCII, एक्सेल. जो आपने एक्सपोर्ट में जो फॉर्मेट देखे थे ना, सारे फॉर्मेट यहाँ पे अवेलेबल है. HTML यानी वेब पब्लिशिंग के लिए, JPEG यानी JPEG इमेज आपकी क्रिएट हो जाएगी, PDF यानी PDF फॉर्मेट रेडी होगा. पेज साइज आपको कैसा चाहिए? लीगल चाहिए, A4 चाहिए, A5 चाहिए, लेटर चाहिए या यूजर डिफाइन चाहिए, आप चूज करिए. वो साइज में आपका PDF फॉर्मेट जनरेट होगा. अभी आप इसको किसको भेजना चाहते हो, ये ईमेल एड्रेस लिखिए, arun@appsoftindia.com. ये मेरा ऑफिशियल मेल आईडी है, तो ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे. एंड देन सब्जेक्ट बिल रिसीवेबल, आपको कुछ रिमार्क्स लिखना है. प्लीज पे द आउटस्टैंडिंग immediately. राइट, शिफ्ट एंटर करोगे तो आपको नीचे का लाइन पे शायद नहीं दे रहा है मुझे, anyway, otherwise it gives you, and you save this information and you say yes to your mailing. So ये देखिए मेरा मेल हो रहा है. ऑथेंटिकेशन फेल्ड यानी मेरा पासवर्ड कहा तो भी गलत हुआ है, इस वजह से वो ऑथेंटिकेशन फेल्ड है. ये पहला रीजन हो सकता है. दूसरा रीजन जीमेल. दूसरा रीजन ये है कि जीमेल आपको आउटसाइड यानी एक्सटर्नल जो एप्लीकेशन है, एक्सटर्नल एप्लीकेशन को उसका जीमेल यूज करने के लिए इमीडिएटली परमिशन नहीं देता. आपको जाके आपके सेटिंग में उसको अलो करना होता है. यूज थर्ड पार्टी एप्लीकेशन टू यूज जीमेल अकाउंट. इस तरह की कुछ सेटिंग है, वो सेटिंग का आपको यस करना होता है, तो ही आपको जीमेल थर्ड पार्टी. अभी टैली उनके लिए थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हो गया. ये एप्लीकेशन से मैं जीमेल यूज करके मैं किसी और को मेल भेज रहा हूँ, तो दिस बिकम्स अ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन फॉर जीमेल एंड यू हैव टू गो एंड अलो दैट एप्लीकेशन. जैसे आप मोबाइल में भी आप काफी एप्स डाउनलोड करते हो और वो ऐप का जो आपका एपीके फाइल रहता है, आप एपीके फाइल थ्रू अगर आप एप्लीकेशन ये कर रहे हो, इंस्टॉल कर रहे हो, तो वो कहता है कि एप्लीकेशन फ्रॉम नो अननोन सोर्सेस. तो अननोन सोर्सेस को जाके आपको पहले यस करोगे तो ही वो आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए परमिशन देगा. सेम वे जीमेल यहाँ पे आपको ब्लॉक करता है. इट डज नॉट अलो यू टू सेंड द मेल्स फ्रॉम थर्ड पार्टी ऐप unless you go and change your settings over there, right? So this is the way we can look at the bill outstanding, receivables and payables, and we move on to the ledger. जैसे रिसीवेबल का देखा, रिसीवेबल में मुझे सारे एक साथ दिखाई दे रहे थे, वैसे मैं लेजर में जाऊँ तो आई कैन चूज वन पार्टी. एक सिंगल पार्टी का देख के मैं इसको
सेम रिपोर्टिंग जनरेट कर सकता हूँ, जैसे एज वाइज है तो एज वाइज कर सकता हूँ सेम, राइट। कॉन्टैक्ट देखना था, ये मैंने अभी कॉन्टैक्ट आपको बताया भी था, ये कॉन्टैक्ट देखना है तो इस तरह से मैं कॉन्टैक्ट भी देख सकता हूँ। बिल सेटलमेंट का भी मैंने ऑप्शन बताया कि आपको बिल सेटल करना है तो 1 2 3 कौन सा सेटल करना है चूज करिए, तो आपको बिल सिलेक्टेड फॉर व्हाट अमाउंट विल बी डिस्प्लेड ऑन द टॉप ऑफ योर स्क्रीन। तो ये जो स्क्रीन पे आपको 82,720 सिलेक्टेड है, इसको आप बिल सेटलमेंट में जाके एक के साथ आपका एक वाउचर बना सकते हो, एंड यू कैन पे, सॉरी दिस इज रिसीवेबल, सो इट यू कैन रिसीव, you can make a receipt entry to receive all these bills in a single voucher. This is a way it can simplify your entries in Tally, right? ये था लेजर, बाद में है ग्रुप। अगर ग्रुप की इंफॉर्मेशन देखनी है तो सन्ड्री डेटर्स की देखनी है तो ये मेरे सिर्फ सन्ड्री डेटर्स के लेजर्स मुझे यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। यहाँ पे भी सेम ऑप्शन आ रहे हैं, बिल पार्टी वाइज, बिल वाइज, ये सारे ऑप्शन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे भी एज वाइज का ऑप्शन है, अगर आपको एज वाइज चाहिए तो यहाँ पे आप एज वाइज, क्योंकि क्या है जो बैंक आपसे डिटेल मांगती है वो इट इज नॉट ऑफ ऑल रिसीवेबल्स, बट वो कहते हैं कि आपका सन्ड्री डेटर्स का हमें एज वाइज दे दो, तो ये आपका सन्ड्री डेटर्स का एज वाइज स्टेटमेंट आपको स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है, राइट। दिस इज अ वे यू कैन डू एज वाइज। इसके बाद में है इंटरेस्ट कैलकुलेशन। One sec, I'll excuse you. I mean, you need to excuse me. Right. So बाद में आता है इंटरेस्ट कैलकुलेशन। अभी अभी आपने आउटस्टैंडिंग का ये जो स्टेटमेंट देखा, आउटस्टैंडिंग स्टेटमेंट से आपको क्या ध्यान में आता है? चलिए मैं ग्रुप का देखता हूँ, डेटर्स, मैं कहता हूँ पार्टी बिल वाइज ऑल टाइप्स में। तो देखिए यहाँ पे 75 दिन अगर मेरा पेमेंट नहीं आ रहा है, ओवर ड्यूज होके आ रहा है, यानी जो 16-15 फरवरी का बिल था आज 16 मार्च को ड्यू था और ये अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है, यानी 75 दिन तक वो ओवर ड्यू हुआ है, तो ऐसे पार्टियों से मैं क्यों ना अपना इंटरेस्ट मांग लूं? आई हैव फुल राइट टू आस्क फॉर द इंटरेस्ट। सर आपने पेमेंट नहीं दिया है, मैं बैंक से लोन लेके सब मेरे एक्सपेंसेस पे कर रहा हूँ, मेरे सप्लायर को पे कर रहा हूँ, और आप मेरा ऐसा पेमेंट नहीं दोगे तो इट इट इज नॉट जस्टिफाइड। आप यू नो आपके पेमेंट ना देने की वजह से आई एम लूजिंग ऑन माई इंटरेस्ट, क्योंकि मैं दूसरे को इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ लेकिन मैं आपसे इंटरेस्ट नहीं ले रहा, तो ये कुछ बिजनेस वाली बात नहीं हुई, तो आपको मुझे इंटरेस्ट पे करना है। तो चलिए पार्टी मान भी गई, एबीसी कस्टमर बोले ठीक है सर आपका कितना इंटरेस्ट आता है आप कैलकुलेट करके हमें दे दो। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, ये सिंपल सा एक ऑप्शन है यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन। आप जाइए लेजर पे और ये देखिए एबीसी कस्टमर है, इनका इंटरेस्ट का स्टेटमेंट निकालिए। आप कहिए सर ये 15 फरवरी से लेके यानी 15 मार्च को मेरा ड्यू था, तो 17 मार्च से लेके देखिए 17 मार्च से लेके 30 मई तक 10%, 75 डेज का 10%, 1541 ये मेरा इंटरेस्ट ड्यू हुआ है जो आपको पे करना है। ये तो हो गया एक बिल का, लेकिन ये दूसरा बिल भी है जो 1,50,000 का था, जिसका बिल डेट था यानी ड्यू डेट था 1 फरवरी, और 1 फरवरी से लेके 30 मई तक 120 दिन का जो इंटरेस्ट हुआ है वो 4,918 है। सेम वे जो 31 मई का बिल था ये ड्यू हुआ था 1 मई को, 60 दिन का क्रेडिट था तो 1 मई को ड्यू हुआ, 1 मई से लेके 30 मई तक 30 दिन का आपको इंटरेस्ट आ रहा है 1,110। तो सर आप ये जो टोटल है 7569 मुझे पे करिए एंड माय इंटरेस्ट स्टेटमेंट आई एम सेंडिंग टू यू। और ये आप इंटरेस्ट स्टेटमेंट उनको प्रिंट करके भेज सकते हो या तो मेल से भेज सकते हो, एंड यू कैन डिमांड योर इंटरेस्ट। और ये इंटरेस्ट डिमांड करने के लिए और कुछ तरीके हैं एंट्री पास करने के लिए, इसके लिए आपको डेबिट नोट पास करनी होती है। तो इंटरेस्ट की डेबिट नोट कैसे पास की जाती है मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे अकाउंट्स इन्फो में वाउचर टाइप है, ये देखिए फिर से जाता हूँ, अकाउंट्स इन्फो में वाउचर टाइप है, वाउचर टाइप में क्रिएट करता हूं मैं इंटरेस्ट डेबिट नोट यानी इंटरेस्ट डीएन। दिस विल बी अ पार्ट ऑफ माय डेबिट नोट वाउचर, सो आई जस्ट से डेबिट नोट।
राइट। डेबिट नोट में मैं आई कैन चूज एनी ऑप्शन, ऑटोमेटिक, मैनुअल, ये सारे ऑप्शन आप देख चुके हैं, राइट। इस तरह से आप एक डेबिट नोट बनाओ और डेबिट नोट जाके क्लास बनाइए। ये वाउचर क्लास काफी यूजफुल चीज है, आप इसको अच्छी तरह से यूज करोगे, एक्सप्लोर करोगे, और एक्सप्लोर कभी कर सकते हो जब भी आप प्रैक्टिस करोगे। तो ये प्रैक्टिस करिए कि कौन से वाउचर टाइप में आप क्लास बना सकते हो, तो क्लास बनाएंगे। मैं कहता हूँ यहाँ पे इंटरेस्ट डेबिट नोट, इमीडिएटली मुझे ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग। मैं कहता हूँ यस, मुझे इंटरेस्ट अकाउंटिंग के लिए ही यूज करना है। अमाउंट टू बी ट्रीटेड एज कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या जो भी अमाउंट है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट ट्रीट करना है या सिंपल इंटरेस्ट? तो मैं कहता हूँ भाई मुझे सिंपल इंटरेस्ट ही चाहिए, मुझे किससे कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं चाहिए। ठीक है, ये सेव कर लिया। फिर से जाता हूँ इंटरेस्ट डेबिट नोट, राइट। सो इस तरह मैंने सेव कर लिया। अभी आके मैं यहाँ पे अकाउंटिंग वॉचर्स में जाता हूँ। अकाउंटिंग वॉचर्स में मुझे डेबिट नोट का ऑप्शन है, डेबिट नोट में मुझे इंटरेस्ट डेबिट नोट का ऑप्शन है। ये क्लास आ गया इंटरेस्ट डेबिट नोट, सेव करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे कस्टमर चूज करता हूँ, देखिए अभी यहाँ पे उतने ही लिस्ट आपको दिखाई दे रही है, लिस्ट ऑफ लेजर्स में एबीसी कस्टमर प्राइवेट लिमिटेड, जिसके ऊपर इंटरेस्ट एप्लीकेबल हुआ है, बस चूज कीजिए उनको। ये देखिए यहाँ पे आपको इंटरेस्ट की लिस्टिंग भी आ गई, तो चूज कीजिए ये इंटरेस्ट के लिस्टिंग को। I'll say interest TN1 या 001, जो भी मुझे रेफरेंस देना है मैं दे सकता हूँ, तो मैं इजीली मेकआउट कर सकता हूँ 2। इंटरेस्ट रिसीवेबल को आप एक क्रेडिट करते हो यहाँ पे। अभी आप स्टेटमेंट देखिए, पहले तो लेजर देखते हैं, डिस्प्ले अकाउंट बुक्स एंड लेजर एबीसी कस्टमर प्राइवेट लिमिटेड। ये देखिए इंटरेस्ट का अमाउंट इसमें ऐड हो चुका है। बिल वाइज देखना है तो ये देखिए बिल वाइज देख सकते हैं, 7569 डेबिट ऐड हो चुका है यहाँ पे, राइट। और अभी आप इंटरेस्ट स्टेटमेंट देखोगे, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में इंटरेस्ट कैलकुलेशन लेजर नील, क्योंकि सारा क्लियर हो चुका है, आपने इंटरेस्ट का जो डेबिट नोट था वो पास कर दिया है, राइट। तो अभी ये नील हो गया। अगर 29 तारीख के डेट तक देखो तो मुझे दिखाई देगा, लेकिन उसके पहले वाला देखो तो नहीं दिखाई देगा। दिस वे यू कैन कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर योर कस्टमर, राइट। I hope you are clear with the interest calculation part. We will move on to the next, कॉस्ट सेंटर्स। कॉस्ट सेंटर्स तो हमने काफी बार, ये कॉस्ट सेंटर्स मैंने आपको कहा कि कॉस्ट सेंटर्स क्यों क्रिएट किए जाते हैं, इसका पर्पस क्या है, इसका यूज कहाँ पे होता है। अभी ये सारे हमने डेटा एंट्री में तो यूज कर लिए कॉस्ट सेंटर्स, कॉस्ट कैटेगरी। अभी इसके रिपोर्टिंग कैसे आते हैं वो हम देखते हैं, कैटेगरी समरी। यानी कि आपको याद रहेगा तो ब्रांच, डिपार्टमेंट और प्रोजेक्ट, ये 3 कैटेगरी मैंने पहले बनाई थी, ये 3 कैटेगरी मैंने पहले बनाई थी। और ये कैटेगरीज के अंदर मैंने काफी सारी एक कॉस्ट सेंटर्स बनाए हैं, जैसे ब्रांचेस के अंदर है बैंगलोर, मुंबई, पुणे, और डिपार्टमेंट के अंदर है अकाउंट्स डिपार्टमेंट, उसके नीचे है देखिए अक्षय करके है, शिफ्ट एंटर करके मैं इसको एक्सप्लोर करता हूँ। सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर है अजय विजय, प्रोजेक्ट के अंदर है प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी। सो इस तरह से मैं अपने कैटेगरी और कैटेगरी के अंदर मेरे कॉस्ट सेंटर्स क्रिएट कर सकता हूँ। कॉस्ट सेंटर के अंदर भी मैं कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे मेरी डिपार्टमेंट कैटेगरी है, डिपार्टमेंट कैटेगरी के अंदर सेल्स डिपार्टमेंट कॉस्ट सेंटर है, और अजय जो है और विजय जो है ये सेल्स डिपार्टमेंट के ही कॉस्ट सेंटर, सब कॉस्ट सेंटर है। इसको मैं देखूं तो ये देखिए ये मेरे कॉस्ट सेंटर के अंदर कॉस्ट सेंटर है अजय। सॉरी, यहाँ से शिफ्ट एंटर अकाउंट ये नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे जाके मैं देखूं अजय। Ajay is a part of department and it is a part of sales department as well.
तो सेल्स डिपार्टमेंट इज अ कॉस्ट सेंटर एंड कैटेगरी इज डिपार्टमेंट। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे डिपार्टमेंट आपकी कैटेगरी है और डिपार्टमेंट कैटेगरी के अंदर आपके सेल्स डिपार्टमेंट कॉस्ट सेंटर है, उसके अंदर अजय और विजय सब कॉस्ट सेंटर है। मैं चाहूँ तो अजय एंड विजय के अंदर भी और क्रिएट कर सकता हूँ। सो यू कैन गो सर्टेन लेवल डाउन टू क्रिएट योर कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर के अंदर आप कॉस्ट सेंटर बनाते जा सकते हो। ये देखिए यहाँ पे बता रहा है कि कौन से ट्रांजेक्शन हुए। जैसे मैं देखूं कि मुझे मुंबई के ट्रांजेक्शन देखने हैं, तो आई कैन गो एंड चेक। तो मैं आपको बता रहा था कि अगर आपने अभी देखिए, अभी अपनी कॉस्ट कैटेगरी समरी देखी, तो कैटेगरी समरी में आपको एक समराइज रिपोर्ट आता है, पूरे समरी का रिपोर्ट आ जाता है यहाँ पे एक ही स्क्रीन पे। लेकिन मुझे लेकिन मुझे अगर कोई कॉस्ट सेंटर का रिपोर्ट देखना है, एक ही कॉस्ट सेंटर, सिंगल कॉस्ट सेंटर, तो यहाँ पे मुझे कॉस्ट सेंटर पे जाके एक ऑप्शन चूज करता हूँ, जैसे से विजय है। तो देखिए विजय का आप देखोगे कॉस्ट सेंटर, तो ये ऊपर आपको लिख के आता है कॉस्ट सेंटर विजय। कॉस्ट सेंटर विजय के अंदर आपने कौन से ग्रुप में वो अफेक्ट हुआ है, कौन से ग्रुप के लेजर में वो अफेक्ट हुआ है, उसका लिस्टिंग आ रहा है। तो एक अज्यूम कीजिए विजय इज माय सेल्स पर्सन, फॉर एग्जांपल विजय इज माय सेल्स पर्सन। तो ये रिपोर्ट मेरे लिए कितना एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट हो सकता है कि अगर विजय सेल्स पर्सन है तो उसने सेल कितना किया है, तो 12,68,700 का उसने सेल किया है ओवरऑल, राइट। तो आउट ऑफ दैट मैंने उसके ऊपर स्पेंड कितना किया है। सो कन्वेंस पे मैंने 2,750, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस सो एंड सो, मे बी आई विल मेक वन सिंगल एंट्री ऑफ से सेल्स, सॉरी सैलरी। ओके, अगर मैं सैलरी की एंट्री भी करूं, सपोज अप्रैल और मई मंथ की, सॉरी सैलरी शायद या सैलरी अकाउंट है, सपोज अप्रैल और मई मंथ की मिलके मैंने 1 लाख रुपए सैलरी उसको पे किया है। डिपार्टमेंट मैं कहता हूँ विजय, या तो मैं थोड़ा ज्यादा सैलरी लेता हूँ यहाँ पे 2,50,000। विजय सपोज आई हैव पेड 1,25,000। देन से अक्षय आई हैव पेड से 75,000, and then I have got one more Ajay 50,000। So इस तरह से मैं सैलरी पे कर रहा हूँ, मे बी थ्रू अ कॉमन चेक टू बैंक। इनको कहता हूँ बैंक को आप इनके अकाउंट पे क्रेडिट करो, तो ये मेरा सैलरी हो गया। अभी इससे मेरा फर्क क्या हो गया देखिए, तो अगर विजय ने मेरे लिए 12,68,000 का सेल लाया है, तो मैंने इसके ऊपर स्पेंड कितना किया है, कन्वेंस के तौर पे 2,750, सैलरी के ऊपर 1,25,000, ट्रैवलिंग एक्सपेंस पे 10,000, इस तरह से 1,37,750 का आज तक मैंने एक्सपेंडिचर किया हुआ है। सो ही इज अ प्रॉफिटेबल पर्सन फॉर मी। So this way, it gives you the proper report which says whether a salesperson, how he is performing sales wise and expenditure wise, whether it helps you to make decision whether to continue with that salesperson or not, or to do away with the salesperson. So ये तो एक एग्जांपल था, लेकिन ये इंफॉर्मेशन आप कॉस्ट सेंटर की इसी तरह काफी सारे आपके अदर यूज के लिए भी, मतलब अदर पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हो। अभी ये हो गया कॉस्ट सेंटर विजय। सेम में मुझे कंपेयर करना है विजय को दूसरे कॉस्ट सेंटर से, तो न्यू कॉलम का ऑप्शन एज यूजुअल है, और इसमें एक काम करता हूँ, मैं ट्रांजैक्शन हटा देता हूँ, तो क्लोजिंग बैलेंस ही दिखेगा। तो मेरा एक रिपोर्ट जो है शॉर्ट रिपोर्ट हो जाएगा। इसको नो कहता हूँ F12 प्रेस करके। कोई भी आपको चीज यस नो करनी है तो F12 में जाइए,
क्लोजिंग बैलेंस दिखाई दे रहा है, न्यू कॉलम करता हूँ और कहता हूँ कि मुझे विजय को कंपेयर करना है अक्षय के साथ। इसके बाद में और एक न्यू कॉलम क्रिएट करता हूँ, कहता हूँ मुझे विजय को कंपेयर करना है अजय के साथ। तो ये देखिए आपका आपके सामने कंपैरिजन है, किसका परफॉर्मेंस कैसा है, किस तरह से कोई मतलब सेल्स वाइज या एक्सपेंडिचर वाइज आपको कौन ज्यादा वायबल है, इसका या तो कौन ज्यादा प्रॉफिटेबल है, या तो कौन परफॉर्मिंग है। ये आपको ये पर्टिकुलर रिपोर्ट आपको असिस्ट करेगी, हेल्प करेगी टू टेक द डिसीजंस रिलेटेड टू anything. This was salesperson was just an example. You can take it branch. अगर branch है तो branch का भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल बैंगलोर ब्रांच है या तो मुंबई ब्रांच है, तो ये मुंबई ब्रांच का मेरा परफॉर्मेंस है F12, इसको नो कहता हूँ एंड आई विल से ऑल सी बैंगलोर है एंड ऑल सी यहाँ पे पुणे है। तो इस तरह से देखिए मैं चेक कर सकता हूँ कि हर एक ब्रांच का परफॉर्मेंस, क्योंकि बहुत समय हमें क्वेरीज आती है अपने यूजर्स से, टैली यूजर्स से, सर मुझे ऐसा रिपोर्ट चाहिए कि मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चाहिए ब्रांच वाइज। तो ये ब्रांच वाइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप कहाँ से निकाल सकते हो? तो ये जो एक पर्टिकुलर रिपोर्ट है, दिस इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू योर ब्रांच वाइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आप इसको अच्छी तरह से आप करोगे, तो आई मीन डेटा एंट्री करोगे, इनपुट्स आपके सही रहेंगे, तो आपका ये रिपोर्ट भी परफेक्टली आ जाएगा। ब्रांच वाइज परफॉर्मेंस कैसा है ये आपको यहाँ पे मिल सकता है, राइट। वील मूव टू द नेक्स्ट रिपोर्ट, लेजर ब्रेकअप। अगर आपको लेजर वाइज देखना है कि मेरा सेल जो है, ये मैं लेजर लेता हूं और ये सॉरी सेल्स लेजर है, इसको लेके मेरे बाकी के कॉस्ट सेंटर कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये देखिए इस तरह से आप ब्रांचेस एक कैटेगरी है, यानी आपका एक लेजर को लेके आपके कॉस्ट सेंटर्स या कॉस्ट कैटेगरी कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, फॉर दैट लेजर इट विल शो यू दैट काइंड ऑफ रिपोर्ट। ऑल सी करके आप इसको एक सैलरी के साथ कंपेयर करना चाहते हो तो ये भी आप कर सकते हो। देखिए this is the way you can do sales ledger wise cost center report, ledger wise cost center report and the comparison report, right? We will move next। जैसे लेजर का हुआ उसी तरह ग्रुप का भी होता है। तो ये देखिए ग्रुप का आपका रिपोर्ट है, ग्रुप लेवल के आप का रिपोर्ट आपको सेल्स में भी सेल्स ग्रुप के साथ देखना है, तो ये सेल्स ग्रुप के साथ आपका कैटेगरी एंड सेल्स रिपोर्ट सॉरी द कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट दोनों आपको एक साथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, you need to explore more because the more time we will be sending, we will be short out of time। so आता है tally audit। tally audit is the basically the internal, it's meant for internal audit purpose। अगर आपको याद रहेगा तो हमने जब ये कंपनी क्रिएट की थी, कंपनी इन्फो में जाके ऑल्टर में मैं जाता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन था यूज टैली ऑडिट फीचर। क्या आपको टैली ऑडिट फीचर यूज करना है क्या? तो आप इसको यस कहिए। आप यस कहते हैं तो देखिए यहाँ पे डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में टैली ऑडिट का फीचर ऑन हो जाता है। और टैली ऑडिट का आपको ऑडिट करने के लिए क्या क्या ऑप्शन है, एक तो वाउचर टाइप से जा सकते हो, यूजर से जाकर, और एक मास्टर्स, यानी कि पर्टिकुलर यूजर ने कितने मास्टर क्रिएट किए हैं वो आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी, राइट। अगर ऑल्टर किया है तो कभी ऑल्टर किया है, और अगर ये सब कुछ होने के बाद आप इसको एक्सेप्ट करते हो तो एक्सेप्ट ऑल करिए तो सारे एक्सेप्ट हो जाएंगे, यानी ये जो भी क्रिएट किए हैं ये परफेक्टली ऑल राइट है एंड वी डू नॉट हैव एनी इशू, इट्स ऑडिटेड, इंटरनली ऑडिटेड। सेम है वाउचर टाइप। अगर वाउचर टाइप में जाओ तो सर इतने सारे वाउचर्स एंट्री हुए, कॉन्ट्रा, रिसीट, डेबिट नोट, इंटरेस्ट डेबिट नोट एंड सो मेनी वाउचर टाइप्स। तो आपको यूजर वाइज देखना है तो आप यूजर वाइज देख सकते हैं। अभी तो फिलहाल हमने एक ही यूजर क्रिएट किया है, उसका यूजर का नाम है ए। तो देखिए टाइप एडमिनिस्ट्रेटर एंड नंबर ऑफ वाउचर्स एंटर्ड इतने हैं, राइट। तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करके देखिए अंदर जाता हूँ ड्रिल डाउन करके, और मुझे यहाँ पे सिर्फ कॉन्ट्रा लिस्ट की ही कॉन्ट्रा वाउचर्स की ही लिस्टिंग आती है, तो मैं यहाँ पे चेंज वाउचर करके ऑल करता हूँ, यानी एक साथ सारे वाउचर्स मुझे ऑडिट करने हैं तो ऑल वाउचर्स किया,
मैंने पीरियड चेंज करके मुझे सारे ईयर के वॉचेस एक साथ चाहिए। लेकिन अगर आपके वॉचेस नंबर ऑफ वॉचेस आर मोर, then tally will load only 1000 vouchers at a time. At a time, tally will load only 1000 vouchers for the purpose of परफॉर्मेंस। अगर आप ज्यादा वॉचेस लोड करोगे तो हर एक वॉचर को सेव, क्योंकि ये रीसेव होता है ना वॉचर, जब आप एक्सेप्ट ऑल करते हो तो रीसेव होता है, इसमें इंफॉर्मेशन लिखी जाती है। सो इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग वर्क। और इसमें क्या होगा, आपको शायद ऐसा लग सके आपका टैली हैंग हो गया है, या तो आपका टैली आउट ऑफ मेमोरी हो गया है, ये हो सकता है। इसके लिए आपको ये बाय डिफॉल्ट टैली 1000 वॉचेस एट अ टाइम टैली ऑडिट के रिपोर्ट में लोड कर देता है। तो आप इसको एक्सेप्ट ऑल करना है या एक्सेप्ट वन करना है, एक वन बाय वन जाके आपको इसको चेक करके एक्सेप्ट वन करना है, तो वैसे कर सकते हो। या तो यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट, यस आई हैव गॉन थ्रू, मुझे सब कुछ एक साथ करना है, तो यू कैन एक्सेप्ट ऑल, सो एवरीथिंग इज ऑडिटेड। नाउ एवरीथिंग इज ऑडिटेड। अभी हम काम करते हैं कि एक यूजर बनाते हैं। ऑल्ट F3 में जाके सिक्योरिटी कंट्रोल में यूजर्स एंड पासवर्ड में देखिए, मैं एक यूजर बना रहा हूं जिसका नाम है, इसका तो लेवल है ओनर। ओनर यानी एडमिन का, एडमिन के जितने भी राइट है ओनर को सारे राइट मिल जाते हैं एक्सेप्ट फॉर सिक्योरिटी कंट्रोल। सिक्योरिटी कंट्रोल और स्प्लिट कंपनी डेटा ये दो चीजें छोड़ के ओनर को सारे राइट्स मिल जाते हैं। तो बी नाम का यूजर बना लिया, उसका पासवर्ड भी बी रखा, और मैं सेव कर लेता हूं। अभी मैं लॉग इन करता हूँ बी से। ये शट कंपनी का बटन यूज करके मैं कंपनी क्लोज करता हूँ, फिर से सिलेक्ट करता हूँ RIL कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, इसको मैं बी से लॉग इन करता हूँ। देखिए यूजर नेम बी, पासवर्ड बी। अभी एज्यूम कीजिए कि इसमें से दो वाउचर जाके मैं चेंज कर रहा हूँ। ये 750 था, मैं सोचा नहीं ये गलत है, इसको 800 कर दिया, राइट। और एक जो सैलरी था इसको मैंने 2,60,000 कर दिया। इस तरीके से मैंने इंफॉर्मेशन चेंज कर दी। अभी इससे क्या हो गया कि जो मेरे ऑडिटेड वाउचर थे वो चेंज हो गए, जो मैं ऑडिट कर चुका था वो वाउचर्स चेंज हुए। अकाउंट्स, फिर से अकाउंट्स में पहुंच जाता हूँ, एक लेजर को भी मैं अल्टर करता हूँ। ये और एक बिल ऐड कर दिया। सो यहाँ पे लेजर भी मैंने अल्टर किया है। ऑल्ट F1 करके मैं शट कंपनी करता हूँ, क्लोज करता हूँ, फिर से मैं RIL कंपनी को ए से लॉगिन से करता हूँ, और जाता हूँ डिस्प्ले में, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड टैली ऑडिट। ये हो गया वाउचर टाइप्स। ये देखिए क्या बता रहा है कि दो वाउचर्स थे, ये अभी री ऑडिट के लिए आ गए। ये क्या हो गया, री ऑडिट के लिए आ गए, क्योंकि इसको एंट्री तो किया था ए ने, लेकिन इसको ऑल्टर किया बी ने। क्या हुआ है, बी ने जाके इसको ऑल्टर किया 30 मई को। 30 मई के दिन ये दो वाउचर ऑल्टर किए हैं। तो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर डू यू एक्सेप्ट इट, एज ए इंटरनल ऑडिटर आप इसको एक्सेप्ट करोगे? आप एक्सेप्ट करना चाहो तो एक्सेप्ट ऑल करिए, या तो एक्सेप्ट वन बाय वन करिए चेक करके, एंड इट विल बी री ऑडिटेड। तो इसका मतलब क्या है, जो ऑडिट होते हैं वाउचर्स उसके बाद में कोई चेंज करता है तो इट विल स्टैंड अगेन फॉर री ऑडिट, राइट। सेम में मास्टर की इंफॉर्मेशन देखो, यहाँ पे बता रहा है लेजर ऑल्टर्ड में एक बता रहा है। देखिए ABC customer को altered by B on 30th May 2020. So if I am an internal auditor, या तो maybe a senior person in my organization, I'll ask the question to B, for what reason you have altered the ledger. So I get this information. This is the power of information technology, कि आपको information मिलना जरूरी है कि क्या हो रहा है, क्या चेंजेस हो रहे हैं, इसकी अगर आपको जानकारी मिल जाए। बेसिकली इट डज नॉट गिव डिटेल चेंजेस कि आपने क्या चेंजेस किया, वो इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, लेकिन एटलीस्ट किसने किया है, कौन से डेट को किया है, वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल रही है, विच विल बी हेल्पफुल टू यू टू ask the questions to users for the changes done by him or her, right? So this is how Tally Audit works for you, and you can explore it more by getting into it. User यानी आपको user wise अगर करना है तो इस तरह आप user wise क्या क्या changes हो रहे हैं ये आप यहाँ पे देख सकते हो, right?
Audit and compliance is made for audit and statistics report. I have already shown, but I'll again go to statistic report. So statistics report में देखिए आपको पूरी समराइज इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये कंपनी डेटा में आपका कौन से तरह का डेटा आपने सेव किया है। जैसे ग्रुप है 29, लेजर है 37, कॉस्ट कैटेगरी 4, कॉस्ट सेंटर, और यहाँ से आप एंटर करोगे तो इट विल टेक यू टू दैट डिस्प्ले लिस्ट ऑफ अकाउंट्स रिपोर्ट। आपको याद है लिस्ट ऑफ अकाउंट्स रिपोर्ट में बार बार आपको दिखाता हूँ, ये रिपोर्ट पे आपको सीधा लिस्ट ऑफ अकाउंट्स पे लेके जाएगा। और यहाँ पे आपको फिर से चांस आपको ऑप्शन है कि यू कैन चेंज द नेचर ऑफ दैट मास्टर। तो वो पर्टिकुलर मास्टर आपको यहाँ से दिखाई देगा। अगर मैं यहाँ से जाऊँ या वहां से जाऊँ, इस वन एंड सेम वाउचर टाइप, ये आपके इतने वाउचर टाइप जो थिन लेटर में बारीक अक्षर में आपको जो वाउचर टाइप के नाम दिख रहे हैं, ये मेरे सब वाउचर टाइप है, यानी वाउचर टाइप क्रिएटेड अंडर वन वाउचर टाइप, राइट। यहाँ पे अभी लेफ्ट सेक्शन पे आते हैं, F12 प्रेस करके मैं कहता हूँ शो वर्टिकल स्टैटिस्टिक्स। वर्टिकल स्टैटिस्टिक्स देखना चाहो तो इस तरह से वर्टिकल स्टैटिस्टिक्स आ जाता है, लेकिन मुझे वर्टिकल नहीं देखना है, वो हॉरिजॉन्टली देखना है। सॉर्ट बाय डिफॉल्ट वाउचर, यस, तो डिफॉल्ट वाउचर ऊपर आएगा, नीचे उसके सब वाउचर आएगी। रिमूव वाउचर टाइप हैविंग नो एंट्रीज, ये देखिए जर्नल के अंडर है फॉरेक्स जर्नल और जर्नल, पेमेंट के अंडर है बैंक पेमेंट और कैश पेमेंट और पेमेंट इटसेल्फ। सेम वे सेल्स के अंडर है सेल्स, बट सेल्स मुंबई, सेल्स पुणे। स्टॉक जर्नल के अंदर है मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, स्टॉक जर्नल। F12 रिमूव वाउचर टाइप हैविंग नो एंट्रीज, जो वाउचर टाइप में एंट्री नहीं है वो मुझे दिखना नहीं चाहिए, तो इट विल रिमूव द वाउचर्स व्हिच डू नॉट हैव एनी वाउचर एंट्री डन फॉर दैट वाउचर टाइप। सो दिस इज द वे स्टैटिस्टिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। अगर आपको ये कंपैरिजन रिपोर्ट भी करना है तो यू कैन डू दैट कंपैरिजन report by selecting another company and going to that report, display statement of accounts and statistics, and I'll say new column or alt C. C plus underline is alt C. So I'll choose another company. इस तरह से आप कंपैरिजन रिपोर्ट भी देख सकते हो। ये देखिए जो टैली सॉफ्टवेयर डेमो कंपनी में उसमें 48 ट्रांजैक्शन है और RIL कंपनी प्राइवेट लिमिटेड उसमें 46 ट्रांजैक्शन है। इसमें हर एक में ग्रुप कौन से है, लेजर कौन से है, इसकी आपको जानकारी एक ही स्क्रीन पे आपको मिल रही है, राइट। ये हो गया अपना अकाउंटिंग सेक्शन कंप्लीट, दैट इज अकाउंट बुक्स एंड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। वी विल बी मूविंग ऑन टू इन्वेंटरी बुक्स, right? So we'll be moving on to inventory books. So going by this timeline or speed, I see, like, you know, by Monday we will be able to finish our reporting section, like whatever the display menu and pending things. And iske baad on the same day I will try to cover with the banking section. This is the banking section, and I think that will be on Monday, and Tuesday will be the final day mostly, in which we will try to cover up your GST and TDS session, right? So this is what I can foresee the plan for next 2 days, or you know, the complete training session of the ongoing session what we have now. So okay, anyway, I'll go to display, inventory books, stock item. So just like if you remember in accounting books I had shown you ledger, जैसे अकाउंटिंग बुक में आपको लेजर बताया था और लेजर चूज करके उसके ट्रांजैक्शन बताई देता है, सेम वे आपको स्टॉक आइटम में, इन्वेंटरी बुक में स्टॉक आइटम के ट्रांजैक्शन आपको दिखाई देंगे इस तरह से। पहले तो आपको मंथली समरी दिखाता है, मंथली समरी के बाद आप अंदर जाओ तो उसके ट्रांजैक्शन बताता है कि कौन से ट्रांजैक्शन हुए, ये आपको यहाँ पे बताता है। अगर आपने बैच यूज किया है तो आप बैच वाइज देख सकते हो, डेली ब्रेकअप देखना है तो डेली ब्रेकअप देख सकते हो, प्रॉफिट देखना है तो प्रॉफिट देख सकते हो, कितना प्रॉफिट आपने किया। अगर ये स्टॉक को आपको अल्टर करना है SG40, तो आप स्टॉक अल्टर का ऑप्शन यूज करके इसमें कुछ चेंजेस करना है तो चेंजेस करा सकते हो, राइट। इस तरह से आप अपना स्टॉक लेजर, जो यूजुअली आप स्टॉक समरी भी देखते हो, स्टॉक समरी में देखिए इस तरह से आप इसमें जाते हो, इसमें तो सेम जो स्टॉक आइटम आपको दिखाई देता है, सेम ऑप्शन मुझे यहाँ पे इन्वेंटरी बुक्स में मैं एक इंडिविजुअल स्टॉक आइटम चूज करके देख सकता हूँ, राइट। बाद में आती है ग्रुप समरी।
तो आपकी ग्रुप समरी प्राइमरी करूँ तो ये मेरा स्टॉक समरी रिपोर्ट ही मेरे सामने आता है। तो काफी सारी जो रिपोर्ट है वो बेसिकली आर द सेम रिपोर्ट बट विद द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक और मे बी डिफरेंट व्यू पॉइंट से वो वहां पे मेनू में प्लेस किए गए हुए हैं। So if I select primary, it will show me stock summary, entire stock summary. If I choose a group wise, then it will show me a single group. जैसे मैं यहाँ से भी सिंगल ग्रुप पे जाऊँ तो वो ही रिपोर्ट दिखाई देता है। सो दिस इज द स्टॉक ग्रुप रिपोर्ट। बैच रिपोर्ट, अगर मैंने किसी भी आइटम में बैचेस बनाई है तो यहाँ पे देखिए 40 इंच एलईडी में मैंने बैचेस बनाई है। तो इसमें 2 बैचेस है, A123 और प्राइमरी बैच। ये बैच की मैं रिपोर्ट देखना चाहूँ तो इस तरह से उसकी मूवमेंट मुझे बताई देगा कि इसकी ये बैच में के इसकी मूवमेंट कैसे हुई है। देखिए स्टॉक आइटम 40 इंच एलईडी, बैच नंबर B123, मैन्युफैक्चरिंग डेट सो एंड एक्सपायरी डेट इज सो एंड सो इनवर्ड्स हो गया है, इसमें आउटवर्ड कुछ भी नहीं है। सेकेंड बैच प्राइमरी बैच देखना चाहो तो सेम, ये देखिए इतने ट्रांजैक्शन हुए जिसमें 15 नंबर्स मेरे ओपनिंग बैलेंस में थे, सॉरी ओपनिंग बैलेंस में थे। इसमें से सेल्स पुणे को मैंने 2 बेचे, आई मीन सेल्स पुणे वाउचर थ्रू मैंने 2 बेचे। स्टॉक जर्नल यानी स्टॉक ट्रांसफर किया मुंबई से लेके पुणे में, राइट। तो ये इतने ट्रांसफर हुए। इसमें कुछ पेमेंट मैंने किया था रिलेटेड टू दैट, बेसिकली ट्रांसपोर्ट चार्जेस पे किए थे, तो वो मेरे स्टॉक वैल्यू को ऐड होना चाहिए। ये मेरे स्टॉक वैल्यू को ऐड होना चाहिए, इसके लिए मैंने 5,000 रुपए का वाउचर क्रिएट किया जो ये मेरे एक्चुअल वैल्यू को बढ़ा रहा है, राइट। एंड देन फिजिकल स्टॉक, मेरा स्टॉक कम हो गया फॉर सम रीजन, ब्रोकन हो गया, चोरी हो गया, तो आई नीड टू पास अ फिजिकल स्टॉक एंट्री। और इस तरह से मेरे बैच की मूवमेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, प्राइमरी बैच की मूवमेंट यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसके बाद में है सेल्स ऑर्डर बुक, जो मैंने उस दिन आपको बताया था कि सेल्स ऑर्डर आप एंट्री करते हो तो सेल्स ऑर्डर की आप एंट्री करते हो तो यहाँ पे आपको ये सेल्स ऑर्डर की बुक दिखाई देती है कि कितने आपने सेल्स ऑर्डर। आई होप ऑल ऑफ यू एज बीइंग अटेंडी ऑफ दिस सेशन, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको याद है कि सेल्स ऑर्डर क्या है। मुझे फिर से ये दोहराने की जरूरत नहीं। सेल्स ऑर्डर यानी क्या होता है, एक सेल्स साइकिल में एक पहला कंपोनेंट, पहला स्टेप होता है जिसमें आपको कस्टमर से जो परचेस ऑर्डर मिलती है वो आप सेल्स ऑर्डर करके यहाँ पे एंट्री करते हो। ये सेल्स ऑर्डर आप डिलीवरी चालान के साथ लिंक करते हो और आपका डिलीवरी चालान है आप इनवॉइस के साथ लिंक कर सकते हो। और ये सेल्स ऑर्डर का बेनिफिट भी मैंने आपको बताया था कि ये आपको जानकारी, बहुत अच्छी जानकारी दे सकता है। आप अगर टैली को बुक कीपिंग सॉफ्टवेयर यूज नहीं करते और एक इंटेलिजेंट ईआरपी सॉफ्टवेयर की तौर पे इसको देख रहे हो तो ये सेल्स ऑर्डर काफी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट हो सकता है आपके लिए, क्योंकि आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है ये आपको आपके हाथ में कितना स्टॉक है वो बताएगा। लेकिन सेल्स ऑर्डर आपको ये बताएगा कि आपके पास अभी भी कितने ऑर्डर्स पेंडिंग है जो एग्जीक्यूशन के लिए पड़े हैं या तो आपने एग्जीक्यूट नहीं की है, यानी आपके पास सेल्स ऑर्डर आके तो पड़ी है लेकिन आपके पास शायद स्टॉक नहीं। तो दिस विल हेल्प यू टू डिटरमाइन कि आपको कितना अभी मैन्युफैक्चरिंग नया करना चाहिए, या तो आप ट्रेडिंग में हो तो आपको और कितना यही मटेरियल प्रोक्योर करना चाहिए ऑन इमीडिएट बेसिस टू सप्लाई दिस टू योर कस्टमर। सो दिस इज द वे सेल्स ऑर्डर हेल्प्स यू। सो दिस इज द सेल्स ऑर्डर बुक। ये स्टैटिस्टिक्स जैसा ही रिपोर्ट है, जैसे मैंने जर्नल का स्टैटिस्टिक बताया था, ये सेम स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट है। सेम वे परचेस ऑर्डर भी एक स्टैटिस्टिक रिपोर्ट है। आपने कितने परचेस ऑर्डर बनाए ये नंबर वाइज आपको यहाँ पे परचेस ऑर्डर बुक में दिखाई देते हो। जैसे सेल्स ऑर्डर देखा है, परचेस ऑर्डर बुक देखे, वैसे स्टॉक ट्रांसफर है, स्टॉक ट्रांसफर की कितनी एंट्री है अपने पास की, ये भी स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट ही है। अभी आप शायद पूछेंगे सर बार बार आप स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट, तो ये भी मैं बता चुका हूँ कि स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट कौन से होते हैं। ये जो स्टैटिस्टिक्स में जाके आप इंडिविजुअल वाउचर टाइप पे आप एंटर करते हो, जैसे मैंने आपको सेल्स ऑर्डर के बारे में बताया, तो ये देखिए सेल्स ऑर्डर का यहाँ पे रिपोर्ट है 3। तो ये सेम स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट, वी कॉल इट एज अ स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट। स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट इज नथिंग बट अगेन अ डे बुक रिपोर्ट, कि एक पर्टिकुलर डे बुक का आपको फिल्टर्ड रिपोर्ट बताता है फॉर दैट वाउचर टाइप। एक डे बुक में क्या होता था, सारे वाउचर टाइप एक साथ आते थे, यहाँ पे आपको फिल्टर्ड वो वाउचर टाइप पे लेके वो रिपोर्ट आ जाता है। अगेन आई विल गो टू इन्वेंटरी बुक्स। स्टॉक ट्रांसफर देख लिया, फिजिकल स्टॉक ट्रांसफर, अगेन ये फिजिकल स्टॉक ट्रांसफर कितने एंट्री की है
कितने नंबर ऑफ वाउचर्स आपने एंट्री किए, उसकी जानकारी आपको एक स्टैटिस्टिक रिपोर्ट द्वारा यहाँ पे बताई दी जाती है। मूवमेंट एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, मूवमेंट एनालिसिस, और इसमें काफी सारे सब मेनू आइटम्स भी है। तो शायद मुझे लग रहा है कि 2 घंटे से आप मुझे बहुत पेशेंटली सुन रहे हैं, शायद आपका माइंड भी थोड़ा थक चुका रहेगा। I want all you to be present with the fresh mind for this particular section called movement analysis. Very एक एक अच्छा एक इंफॉर्मेटिव मेनू है हमारा। या तो काफी लोग इसको यूज नहीं करते, लेकिन इस ये जानकारी काफी इंपॉर्टेंट होती है आपकी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। सो आई थिंक वी शुड बी starting this session as a fresh session, so you will be able to understand to the fullest extent कि आप इन्वेंट्री का यूज टैली में किस तरह से कर सकते हो, और मूवमेंट एनालिसिस आपको कौन से तरीके के रिपोर्ट आपको दे सकता है। सो आई थिंक इट्स टाइम टू स्टॉप हियर, and I say goodbye to you. Take care of your health and see you tomorrow morning. We will start with movement analysis with the fresh mind. Thank you so much and bye bye.